तो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने देख लिया था मिरर एंड ऑल लाइक रिफ्लेक्शन की हमने कंप्लीट बात कर ली थी। और इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टली रिफ्रैक्शन, राइट? ओके। तो बेसिकली यार, रिफ्रैक्शन में होता क्या है, एक मीडियम है ना? मीडियम में लेट से कोई लाइट रे जा रही है, ठीक है? ओके, तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर स्पीड होगी। अब वो जैसे ही वो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो क्या होता है कि मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट की स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से क्या होता है, वो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, राइट? तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ नहीं, लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मोशन की बात करने वाले हैं। ओके, यस। तो रिफ्रैक्शन तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था, और इस लेक्चर में हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है? सो आज हम मेनली बात करेंगे रिफ्रैक्शन, राइट? रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और उसके बाद हम लोग प्रिज्म की बात करेंगे। ये दो चीजें आज अच्छे से कवर हो पाएगी। उसके बाद लेंस आज के लिए कवर नहीं हो पाएगा, है ना? तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा बहुत अच्छे से। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि प्रिज्म भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आप देखेंगे कि प्रिज्म से भी आपको नीट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। So at first, I would like to welcome you all, my dear friends. Welcome to Unacademy. Unacademy में आप सभी का स्वागत है। Unacademy is the India's largest learning platform where you can prepare for the various competitive exams with the help of the top educators of the country with the quality content and great learning experience. So I am available here to help you to crack NEET UG. So let's crack NEET UG. So, my dear friends, my name is Rahul Dagaria. I have been teaching physics since 5 years in the various reputed institutions of India. Till now, I have mentored to the thousands of aspirants of NEET and IIT JEE, and now I am available here to help the students of the country to learn the concepts of physics for NEET UG with the best notes and best examples. So let's move. तो मेरे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट? तो लेट अस टॉक अबाउट आवर न्यू एंथम। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हमारे मोटो। We want you to crack NEET UG with the India's largest learning platform, Unacademy. So, if you wanna crack NEET UG, then just come to us and hold our hand. Means get the plus subscription and access to the unlimited lab and recorded courses from the India's best educators. This, my dear friends, as I said, you will get the India's best educators on this platform, Unacademy. Okay, so if you did not download the Unacademy app yet, go to Play Store and type Unacademy Learning app and download it. Okay? उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. So you can get the Unacademy subscription, right? So it's very easy process. You will get it easily if you download the Unacademy app. After that, what you will get? So why should we download the Unacademy app? What we will get? So I'm talking about that thing, right? What you will get? You will get the daily live classes, live tests and quizzes, structured courses, unlimited access to the live and recorded courses. Yes, my dear friends, you can chat with your educators, you can chat with us, you can engage in any discussion, you can ask your doubts, you can discuss the answer polls, and you are going to have a lot of fun on this platform. And after that, the live test and quizzes. My dear friends, you can evaluate your performance with our regular mock tests and quizzes. Okay, and you will get its detailed analysis. My dear friends, मैं बोल रहा हूँ कि यदि कोई भी स्टूडेंट है, उसको उसकी लर्निंग का तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि उसका टेस्ट नहीं हो जाता। तो मेरे दोस्तों, यदि आप कभी भी कोई भी चीज लर्न कर रहे हो, तो उसकी टेस्टिंग भी साथ साथ जरूरी है। आपको एवेल्युएट करना जरूरी है कि कौन सी चीज आप अच्छे से कैच कर पाए, कौन सा एप्लीकेशन पार्ट आप अच्छे से नहीं सीख पाए, है ना? यस। आफ्टर दैट आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बहुत ही अच्छे से, राइट? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। साथ में कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट? एंड you'll get the complete syllabus, my dear friends, right? After that, unlimited access to the live and recorded courses. बेटा आपने कोई लेक्चर मिस भी कर दिया ना, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ अवेलेबल मिलेगी। तो आपका कोई लेक्चर, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस होने वाला नहीं है। सो आप रिपीटेड मोड पे भी उसको देख सकते हैं, एक बार में समझ में नहीं आए तो। Let's move, my dear friends. Next, I will talk about our free classes. So you can see this is a free YouTube class, right? तो डेली आपको क्या होता है कि YouTube पर लाइव फ्री क्लासेस मिलती है देखने को, राइट?
so you can attend the classes and you can enjoy it. But ये क्या होगा, ये some random topics होंगे, लेकिन properly structured way में पूरा course आपको चाहिए, तो उसके लिए definitely आपको जाना होगा अनअकैडमी ऐप पर। तो आगे बढ़ते मेरे दोस्तों, हमारे टॉप एजुकेटर्स की मैं बात करना चाहता हूँ। तो हमारे जो भी टॉप एजुकेटर्स है वो आईआईटीज, एनआईटीज, एम्स एंड रेप्यूटेड एमबीबीएस कॉलेजेस से हैं, ठीक है। और मैं बात करता हूँ कि उन्होंने अभी तक बहुत अच्छी अच्छी रैंक प्रोड्यूस की है मेरे दोस्तों। तो बहुत अच्छी अच्छी रैंक प्रोड्यूस की है, मतलब वो डेफिनेटली बहुत एक्सपीरियंस है ना। मैं भी आने वाला हूँ कुछ दिनों में इनके बीच, राइट। यस। तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि एक्सपीरियंस लोगों से आप पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक आप भी ला सकते हो, है ना। यस। तो आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की, राइट। या तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि बेटा यदि आप किसी को ऑफलाइन कोचिंग में होता हो ना, तो वहाँ आपको अपना एजुकेटर खुद से चूज करने की कोई मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, राइट। आपको कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके। सो या सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हमारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, राइट। यदि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पे करना होता है 6,000 रुपीज, राइट। और यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 30,000 रुपीज पे करना होता है। और यदि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 36,000 रुपीज पे करना होता है, राइट। बीच में ये भी है, देखो 3 मंथ के लिए 15,000, 6 मंथ के लिए 24,000, बट मैं जो है मेनली 1 मंथ और 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। 1 मंथ के लिए 6,000 है ना, 12 मंथ्स के लिए 30,000, सो 6 into 5, सो जस्ट 5 मंथ्स की इक्विवेलेंट फी ही आपको देनी पड़ रही है। और दिस इज 36,000, सो 6 into 6 36, जस्ट 6 मंथ्स की इक्विवेलेंट फी ही आपको पे करनी पड़ रही है, राइट। पर यदि आप मेरा कोड यूज कर लेते हो RAHULD, राहुल डी, यदि आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट माय डियर फ्रेंड्स। आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% वेवर मिल जाता है, 10% डिस्काउंट मिल जाता है। और 1 मंथ के लिए आपको पे करना होता है सिर्फ 5,400 रुपीज। आफ्टर दैट 12 मंथ्स के लिए आपको पे करना होता है 27,000 रुपीज। एंड 24 मंथ्स यानी कि 2 इयर्स के लिए आपको पे करना है सिर्फ 32,400 रुपीज। यानी कि यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल गया। और 10% डिस्काउंट के बाद आप लोगों को ये इतनी सी फी आपको पे करनी हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा बेनिफिशियल है बेटा, डेफिनेटली या तो 12 मंथ का बेनिफिशियल है या फिर 24 मंथ्स का बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि एक तो 5 मंथ्स की इक्विवेलेंट फी देनी पड़ रही है 12 मंथ के लिए, 6 मंथ्स की इक्विवेलेंट फी देनी पड़ रही है 24 मंथ्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, 1 मंथ में आप कितने टॉपिक पढ़ सकते हो? 1 मंथ में हार्डली 3-4 टॉपिक्स आप सीख पाओगे एक सब्जेक्ट के। लेकिन 12 मंथ्स में आप पूरा सिलेबस कर सकते हो मेरे दोस्तों, पूरा का पूरा सिलेबस, है ना। 24 मंथ, ऑब्वियसली यदि आप 22 में एग्जाम दे रहे हो, आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है। और यदि आप 21 में ले रहे हो तो आप 12 मंथ का ले सकते हो, है ना। और 24 मंथ्स का भी ले सकते हो, आप किसी को बेच सकते हो 1 साल के लिए, है ना, उसके बाद। तो एनी हाउ इट आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेने चाहते हो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ 12 या 24 मंथ्स का ही आप लीजिए, बहुत बेनिफिशियल। So let us talk about our topic. My dear friends, today I am going to talk about refraction. बेटा रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रिज्म देखूंगा, है ना। तो रिफ्रैक्शन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे ही दिया था कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड जैसे ही चेंज होती है तो क्या हो जाएगा, वो अपने पास से थोड़ी सी डेविएट कर जाएगी, और इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके। यस। सो रिमेंबर वन थिंग, let's say in vacuum, right, in vacuum speed of light, in vacuum speed of light is c की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 3 into 10 raised to 8 meter per second, so 3 into 10 raised to 8 meter per second, so this is the speed of light in vacuum। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप बता दो कि वाटर में कितनी होगी, एयर में कितनी होगी, ग्लास पे कितनी होगी, है ना। तो सिंपल सिंपल सी बात है कि यानी कि किसी भी मीडियम की बात करूँ, किसकी, मीडियम की, तो किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड v इज इक्वल टू c बाय म्यू। क्या होता है c बाय म्यू? हियर म्यू इज, mu is, this symbol is mu, right? It is what? It is refractive index, my dear friends. It is refractive index, index of medium. Okay, yes, yes. तो याद रखना, वाटर, वाटर के लिए म्यू ऑफ वाटर, वाटर दैट इज 4/3। ओके।
म्यू ऑफ ग्लास जनरली 3/2। ओके, बाकी डिपेंड करता है किस टाइप का ग्लास है ना। यस, तो ये बेसिक सी चीज याद रखनी है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Refractive index is just a factor, right? It is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium. That's all. So this is called refractive index. Okay, याद रखना है ये फॉर्मूला कि mu is equals to c upon v, speed of light in vacuum divided by speed of light in the medium. Okay, that's all my dear friends. So you can do it. Okay, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? Yes, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ। एनी हाउ ये क्या है? रिविजन है, राइट? तो म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों का रेशियो ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ डायग्राम दिख रहा है आपको, है ना? तो ये देखो, ये डायग्राम है। इसमें जहां पर इंसिडेंट रे होती है ना, जहां पर इंसिडेंट रे होती है उसको हमेशा फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, मीडियम वन बोलते हैं, ठीक है? और जहां पर एक मीडियम से क्रॉस करने के बाद दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो दूसरा मीडियम जो होता है ना, वहां पर क्या होती है? रिफ्रैक्टेड रे। वहां क्या होती है? रिफ्रैक्टेड रे। उसको हम हमेशा बोलेंगे मीडियम नंबर टू। उसको हम बोलेंगे मीडियम नंबर टू। ओके, आप चाहो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप चाहो तो एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों ही सेम है, सिंबल से फर्क नहीं पड़ रहा है ना? यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट किया है। तो पहला, जहां पर इंसिडेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n1, और जहां रिफ्रैक्टेड रे उस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2। ओके, याद रहेगा? ओके, तो एज आई टोल्ड कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से क्या होता है कि लाइट जो होती है ना, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ओके, यस, तो फटाफट फटाफट यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें। लिसन, लेट्स से दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, या मैंने बोल दिया कि ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, बहुत थिक मीडियम है, डेंस मीडियम है। ओके, एंड ये रेयर मीडियम है। ओके, तो ये रेयर मीडियम हो गया, बहुत ही लाइट है इस डेंस मीडियम के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। ओके, चल, तो अब मैंने क्या बोल दिया कि जब भी लाइट रे, देखो एक तो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है और एक पूरा खाली जगह है, ऑब्वियसली कहाँ फास्ट मूव कर सकते हो? खाली जगह में फास्ट मूव कर सकते हो, भीड़ भाड़ में उतने अच्छे से मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ मैंने बोल दिया कि चलो, ये जो है ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब लाइट रे जैसे ही कम यानी कि लेस डेंसिटी वाले मीडियम में पहुंची, यानी कि कहाँ पहुंच गई? लाइट जैसे ही पहुंचती है रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में मैं बोलता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है, ठीक? जहाँ डेंसिटी कम होती है वहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तब भी स्पीड इंक्रीज होती है तो जो लाइट रे होती है ना, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। किधर हट जाती है? नॉर्मल से अवे। सो दिस इज आर। ओके, रिमेंबर, सो हियर आई विल से व्हाट? एंगल आर दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से बड़ा होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? राइट, या सो हमें क्या समझ में आया कि जब कभी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट एंटर करती है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, then light will move away from the normal. Okay, light will move away from the normal, that's all। ये सिंपल सी चीज याद रखनी है। और जस्ट दूसरा ले रहा हूँ इसका ऑपोजिट, राइट? इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ कि जब कभी भी लाइट जो है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, यहाँ से इंसिडेंट होकर गई, यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है नॉर्मल। ठीक, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेयर मीडियम है और उस तरफ क्या? उस तरफ डेंसर मीडियम है, तो डेंस यानी कि कम भीड़ वाले से ज्यादा भीड़, कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी में गया, तो स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड जब भी कम होती है ना, तो क्या हो जाता है कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप सबको पता है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो डायरेक्टली आई विल से इन दिस केस आई, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? यस, ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। दैट्स ऑल, ठीक है? तो जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर किया तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्या होता है कि बेंड हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो इस सब चीजों को हम फाइंड करते सकते हैं स्नेल्स लॉ से। ओके, स्नेल्स लॉ, माय डियर फ्रेंड, स्नेल्स लॉ क्या होता है? लिसन, स्नेल्स लॉ, नो, स्नेल ने बोला था कि यार n1 sin i, n1 sin i is equals to n2 sin r, n1 sin i is equals to n2 sin r। ये आपको ध्यान में रखना है।
इसका मतलब क्या है, n1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर टू, एंड दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मीडियम नंबर वन है जहाँ इंसिडेंट रे है, एंड रिफ्रैक्टेड रे जहाँ है वो मीडियम नंबर टू है, राइट। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, यही सिंपल सा स्नेल का लॉ है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। आगे हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो स्नेल ने बोला था कि sin i by sin r is equals to n2 by n1 होता है, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू v1 by v2। v1 by v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ओके, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा जो होता है ना, दैट इज wavelength of the light, okay, wavelength of the light ray, okay। ये रिलेशन आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, n1 sin i is equals to n2 sin r, तो यही स्नेल्स लॉ है, राइट। ये दोनों ही फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना चाहिए ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, ये दोनों ही चीजें आप अच्छे से याद रखो, ओके, माइंड इट। नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। A light ray is incident on a glass sphere। अब देख सकते हो है ना कि ये n is equals to 1, तो ये इंसिडेंट रे है ना, तो ये इंसिडेंट रे, ओके, एट एन एंगल, यहाँ पर 600 दिख रहा है एक्चुअली, राइट, इंसिडेंट 600 नहीं है, ये 60 डिग्री है, क्या है ये, गलती से ऐसा आ गया है, एक्चुअली ये 60 डिग्री है, एज शोन। फाइंड द एंगल r, r dash and e and the total deviation after the two refraction। तो देखो पहला रिफ्रैक्शन क्या है, बाहर कौन है, बाहर है एयर, अंदर कौन है, अंदर है ग्लास, है ना, ग्लास का स्फीयर है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये आया तो ये आर आ गया, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, n1 sin i is equals to n2 sin r, राइट। तो n1 sin i को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 into sin i sin 60 डिग्री, आपको दिख रहा है ना, दिस इज i मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दिस इज 60 डिग्री, तो ये हो गया sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू n2 sin r, n2 इज द सेकंड नंबर मीडियम, दिस वन, है ना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया √3, तो √3 sin r, ओके। चलो वैल्यू रखे, वैल्यू रखते हैं, तो √3/2 इज इक्वल्स टू √3, और यहाँ आ जाएगा sin r, डायरेक्टली पता चल रहा है sin r की वैल्यू आ रही है 1/2, और r की किस वैल्यू के लिए हमें sin की वैल्यू 1/2 मिलती है, तो r विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। तो जब भी r 30 डिग्री होगा, आर की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तब मैं बोल लूंगा क्या कि यार मतलब साइन आर की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया, आर की वैल्यू जो आनी चाहिए 30 डिग्री, तो एक चीज तो सॉल्व हो गई, आर की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे बात करनी है आर डैश की, तो बेटा ध्यान से देखो, ये ये हो गई रेडियस, ये भी हो गई रेडियस, है ना, और ये हो गई ये साइड, तो मुझे पता चल रहा है कि कैसा है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है ना, और आइसोसेल्स ट्राइंगल में यदि ये साइड है ना, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल, इसका मतलब मुझे पता चल गया आइसोसेल्स ट्राइंगल में आर विल बी इक्वल टू आर डैश, ओके, आर आर डैश के इक्वल होता है, ऑब्वियसली एक स्फीयर है तो ये तो कंपलसरी है ना, यदि दोनों साइड्स इक्वल है तो मतलब दोनों एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो आर विल बी इक्वल टू आर डैश, ओके, तो इसका मतलब 30 डिग्री, आपको आर डैश की वैल्यू भी मिल गई 30 डिग्री, ओके। अब मुझसे कोई पूछ रहा है ई की वैल्यू बता दो भाई, ई की वैल्यू बताते हैं, ठीक है, ई की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बोल दिया कि यार ई के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इतने पार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ, इतने पार्ट को, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई पहले ना स्फीयर के अंदर से लाइट रे इंसिडेंट है और बाहर फिर निकल रही है एयर में, मैं बोल लूंगा फिर से क्या, यहाँ मैं लिख लूंगा √3 sin i, आई मतलब क्या, आर डैश है ना, आर डैश इज इक्वल्स टू 1 sin e, ओके, क्योंकि आउटर मीडियम जो हो गया वो मीडियम नंबर 2 बन गया, और इनर मीडियम जो है वो मीडियम नंबर 1 बन गया, √3 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू साइन e, तो साइन ई की वैल्यू मिल गई हमें बेटा, क्या मिल गई, यहां से हमें मिल रहा है साइन ई इज इक्वल्स टू √3/2, और ये किसके लिए आती है बेटा, ई की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है, क्योंकि मुझे पता है साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ ई, है ना। तो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे टोटल डेविएशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टोटल डेविएशन, लाइट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जाने के बाद कितनी डेविएट हुई, तो ध्यान से देखो, यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने बोला लाइट रे ये गई, ये जाने के बाद फिर क्या हो गया, लाइट रे
ये जाने की बजाय यहाँ से थोड़ी सी ऐसे डेविएट हो गई, ये डेविएट हो गई। फिर यहाँ एक और सरफेस आई तो वो सीधी जाने चाहिए थी, पर सीधी नहीं जाके यहाँ फिर से डेविएट हो गई। एक बार डेविएशन यहाँ हुआ और एक बार डेविएशन यहाँ हुआ, ठीक है। चलो, ये एंगल कितना था? यस, ये एंगल था 6। यहाँ मैं बात करता हूँ फटाफट। यस, तो ये वाला एंगल था 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। ओके, उसके बाद मुझे क्या समझ में आया, यहाँ पर प्रॉपरली नहीं बना, सॉरी। मैं इस सब को इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं प्रॉपर डायग्राम आपको शो कर पाऊँ और आप अच्छे से समझ पाए, है ना। क्योंकि ग्लास में एंटर कर रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जानी चाहिए, है ना। हाँ, तो वही मैंने किया है यहाँ पर। लेट्स से ये कंप्लीट स्फीयर आ गया हमारे सामने। ओके, चलो यहीं पर दिखा देता हूँ इस वाले डायग्राम में, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पर हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। लाइट रे आई, ये नॉर्मल से एंगल बना रही है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और ये कितना है? ये तो है 30 डिग्री। ओके बेटा, सो आप बोल सकते हो क्या कि यार ये लाइट रे ऐसे थी, नॉर्मल से पहले 60 बना रही थी, इधर भी 60 आना चाहिए था, तो पहला पहला इसका डेविएशन हो गया 30 डिग्री। 60 माइनस 30 इज 30 डिग्री, ठीक है। ओके, अभी लाइट रे ऐसे जा रही है, अब लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसे, है ना, ऐसे जानी चाहिए थी। तो आर डैश की वैल्यू 30 डिग्री, कितनी? 30 डिग्री। ओके, ये वाला 30 डिग्री, लेकिन ई पूरे की वैल्यू कितनी है? पूरे की वैल्यू आई 60 डिग्री। और ये वाला कितना है? ये वाला तो 30 डिग्री है। तो मतलब फिर से कितना? तो डेल्टा टू, फिर से उसका डेविएशन हो गया 30 डिग्री, है ना। तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा? डेल्टा टोटल डेविएशन, दैट इज डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, एंड दैट इज 30 प्लस 30, 60 डिग्री। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? टोटल डेविएशन कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके, ज्योमेट्री देखनी है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। यस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब फिर से देख लो और अच्छे से, है ना। तो 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 sin r। ओके, और r की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ओके, अब सिमेट्री लगा लें तो r विल बी इक्वल टू r डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 1 sin e इज इक्वल टू रूट 3 sin r। ओके, तो 1 sin e इज इक्वल टू रूट 3 sin r। अब यहाँ क्या बोल सकते हैं? e की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। गॉट इट? तो ये हमारा सीधे से आंसर आ गया, है ना। अब क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है डेविएशन। तो दो डेविएशन आ रहे हैं, आई माइनस आर, तो पहले 30 डिग्री, फिर ई माइनस आर डैश, तो वो दूसरा वाला डेविएशन हो गया, फिर से 30 डिग्री, तो 30 प्लस 30 टोटल 60 डिग्री डेविएशन हो गया। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, है ना। आई बात समझ? राइट, दैट्स ऑल। मैं यही बोलना चाहता था कि ये होनी चाहिए थी डायरेक्शन, बट एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? एक्चुअल डायरेक्शन आ रही है ये वाली। ये टोटल डेविएशन जो आएगा ना, ये 60 डिग्री आएगा। हाँ, वहां से। हाँ, ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आया अच्छे से, राइट? यस, ये बहुत सिंपल सी चीज थी, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ए इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज 3c। दिख रहा है आपको? मीडियम ए में उसकी स्पीड ऑफ लाइट हमें फाइंड करनी है, यदि बी में, तो मैं बोल लेता हूँ कि चलो, मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे वी एफ फाइंड करना है। ओके, और वी भी दे रखा है, वी बी इज 3c। ओके, एंड सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है आपको, है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए टू मीडियम बी मेकिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो मीडियम ए से मीडियम बी में जो है वो क्या हो रहा है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एंगल्स बन रहे हैं विद द नॉर्मल, है ना। बस अब ये चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्या करोगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या? म्यू ए साइन थीटा ए प्लस म्यू बी साइन थीटा बी। ओके, राइट। मतलब जब वैक्यूम से मीडियम ए में एंटर करती है ना, तो 45 डिग्री एंगल बनाती है, और वैक्यूम से यदि मीडियम बी में एंटर करे तो कितना? 60 डिग्री एंगल बनाती है, राइट। देख लेते हैं एक बार, यही लिखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ए इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज 3c एंड c इज दिस, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। बेटा, मीडियम ए टू मीडियम बी, सॉरी मैं कुछ और बोल दिया आपको। एक्चुअली मीडियम ए में जो इंसिडेंट एंगल है ना, वो 45 डिग्री है। तो मीडियम बी में जो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दैट इज 60 डिग्री, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, म्यू ए साइन थीटा है इज इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा बी, यानी कि ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों की वैल्यू दे रखी है। ए मीडियम में इंसिडेंस 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री, ठीक है। बस, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इसका रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे मिल गया क्या? हाँ, हम जानते हैं क्या, थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा ना, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी देखा था, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू की जगह क्या, सी अपॉन वी ए, और यहाँ पर म्यू बी इज इक्वल टू सी अपॉन वी बी, बाकी सब एज इट इज है ना। थीटा है, थीटा बी की वैल्यू दे रखी है, रख दो यहाँ पर, है ना। डीबी की वैल्यू दे रखी है, डीबी की वैल्यू आपको दे रखी है 3c, दे रखी है 3c। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर c/3 लिखा हुआ है ना, वो क्या है, वो एक्चुअली 3c है ना। यहाँ पर 3c लगाना होगा, शायद ये स्टेप गलत लिख ली है, चलो उसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पर आ गई स्पीड ऑफ लाइट जो आई है ना, दैट इज 3c, क्योंकि मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो कितनी है, वो 3c है। यहाँ मैंने लगा लिया, अब क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है 1/va, और ये है 1/√2, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, सी से सी कैंसिल, 1/3, एंड ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यही होती है ना। यस, चलो इसको यदि सॉल्व करें तो क्या मिलता है, यहाँ से मुझे मिलता है 1/va इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 1/√3, तो यहाँ पर है ही, है ना, क्योंकि √3 से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ नीचे √3 आ जाएगा, ये √2 ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आई मीन टू से इज 1/√6, क्या आ रहा है, 1/√6, तो VA इज इक्वल्स टू √6, समझ में आ रहा है ना, दैट्स ऑल, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि VA इज इक्वल्स टू, राइट, दैट इज हाउ मच, √3, या यहाँ पर C था, तो ये C यहाँ लिखना होगा, तो √6c, ओके, आ रही बात समझ में। That's all my dear friends, so VA is equals to √6c के बराबर आंसर आना चाहिए। हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया था, एक्चुअली ये आंसर सही है, ठीक है, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं करना है, हेल्थ लॉ का सिंपल एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन, n1 sin I is equals to n2 sin R, और n को क्या बोल सकते हैं, c अपॉन v, तो n1 is equals to c अपॉन v1, n2 is equals to c अपॉन v2, दैट्स ऑल, ओके। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं है, जो मैंने किया है वो सही है, ठीक है। यस, नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब, बेटा पैरेलल स्लैब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये कई बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, इसको हम मिस नहीं कर सकते। सो लिसन, क्या है ये, लेजर ले रहा हूं मैं इसके लिए, लिसन बेटा, जब कभी भी लाइट रे, देखो ये एयर है, एयर से लाइट रे आई और आके इस ग्लास स्लैब में एंटर कर गई। ग्लास स्लैब में जैसे ही एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि ग्लास एक थिक मीडियम है, डेंस मीडियम है ना। क्या हो जाएगा, एयर से ग्लास में आ रही है तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये लाइट रे आई, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो देखो ये देखो आर, आर ये आ गया। अब ये लाइट रे ऐसे जाएगी, यहाँ जाने के बाद यहाँ एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर ये ग्लास से एयर में एंटर कर रही है। यदि ये ग्लास से एयर में एंटर कर रही है तो मैं बोलूंगा कि ये नॉर्मल से दूर हटेगी, तो नॉर्मल से दूर हटा दिया, ठीक है। अब याद रखो, क्योंकि हमें पता है क्या, कि यार बेटा सिंपल सी बात है, हम अल्टरनेट एंगल थ्योरम वगैरह यूज करते हैं जनरली, हमें बहुत बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पेन ले लेता हूँ तो अभी पता चल जाएगा क्या पता है हमें अच्छे से, है ना। तो मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ, लिसन बेटा क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये हो गए दो, ये वो ग्लास स्लैब हो गई, ठीक है, लाइट आई यहाँ से एंटर की, एंटर कर दी, ये मैंने नॉर्मल बना लिया, तो मैंने एंगल आई बोल दिया, ठीक है। चलो अब ये क्या हो गया, ये ऐसा बना लेते थोड़ा, हाँ। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई तो ये लाइट ऐसे जाएगी, इस एंगल को मैंने बोल दिया आर, ठीक है, आर बोल दिया, यहाँ नॉर्मल फिर से ड्रॉ कर दिया, और ये फिर से क्या हो जाएगी, फिर से एयर में आ गई, इसको मैंने बोल दिया फिर से। अब ये कितना होगा, देखो ये आर है ना, तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आर, और ये एंगल आर है तो ये कितना हो जाएगा, फिर से आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई। मतलब एक बात ध्यान रखो, यदि एयर से एंटर कर रही है एंगल आई पर, है ना, फिर कितने भी मीडियम से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में वापिस एयर में आ रही है तो फिर से जो लास्ट एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, वो एंगल आई हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब इंसिडेंट रे जो होगी वो इंसिडेंट रे एंड लास्ट की जो रिफ्रैक्टेड, जो सबसे लास्ट रे जो है इमर्जेंट रे, वो हमेशा पैरेलल होगी, ठीक है। मतलब वो यदि फिर से एयर में है तो पैरेलल होगी, एयर में नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। यही सिंपल सी बात मैं आपको बोलना चाहता था, ओके। चलो फटाफट इसको डील करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली रे, और लास्ट में ये जो दिख रही है ये वाली रे, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि सेम मीडियम है। यस, अब मुझे ध्यान से दिखाई दे रहा है कि यदि ये इंसिडेंट रे होती तो ये ऐसे जा रही होती, है ना। अब ये यहाँ से जा रही है फाइनली,
इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई डी, तो हम बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट। क्या बोलते हैं? अपेरेंट शिफ्ट। देखो बीच में मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो गई, डेविएट होने के बाद वापस पैरेलली जाती है लेकिन एक नए पाथ से जाती है। तो कहने का मतलब इन दोनों ही लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, दैट इज कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। सॉरी, अपेरेंट डेप्थ नहीं, अपेरेंट शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेरेंट शिफ्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, lateral shift, okay, right, remember lateral shift बोलते हैं। apparent shift and apparent depth आगे आने वाला है, जब वो किसी मीडियम में कोई पार्टिकल रखा होता है तो वो ऊपर नीचे दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं lateral shift। मतलब ये लाइट रे जा रही है और ये क्या होती है, पैरेलली शिफ्ट हो गई है ना, तो इसको बोल रहे हैं lateral shift, याद रखना है ना। तो yes, when light passes through the parallel slab having the same medium on both sides, यानी कि स्लैब के दोनों तरफ मीडियम सेम है ना। Emergent ray is parallel to incident ray, as I told, this is incident ray and this is emergent ray, so both will be what, parallel, okay। फिर यहाँ पर कितना lateral, या so lateral shift कितना होगा, तो ये होगा d, d is equals to t sin I minus r upon cos r। समझ में आ रहा है? I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, R मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे कैसे ये सब चीजें पता चलेंगी आपको? आपको पता है n1 sin I is equals to n2 sin R, ये सब चीजें आपको पता है। n1 इज एयर एंड n2 इज ग्लास, ठीक है, उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस यहाँ से आपको आई आर सारी वैल्यू मिल जाती है। अब आप आई की तो दे रखी होती है, ठीक है, कि मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब, वो स्लैब जो है उसकी थिकनेस कितनी है, ये दिख रहा है ना आपको, ये स्लैब की थिकनेस हो गई टी, ओके। ये मीडियम n1 हो जाएगा और ये मीडियम n2 हो जाएगा। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया r, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n1 sin i is equals to n2 sin r, ओके। यस, तो यहाँ पर लेटरल शिफ्ट पता चल गया, d is equals to t sin i minus r upon cos r, d is equals to t sin i minus r upon cos r, याद रखना, ठीक है, राइट, गॉट इट। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, है ना। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ बेटा। तो लेट्स से ये कोई लाइट रे है और ये 60 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है, कितना, 60 डिग्री पर, ओके। और मैंने बोल दिया कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर जो है n इज इक्वल टू वो है √3, कितना है, √3। चल, अब हमें बताना है कि ये हाँ, यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा ग्लास स्लैब में, और फिर फाइनली ये फिर से इधर से जाने लग जाएगी, तो कितना लेटरल शिफ्ट हुआ। तो लेटरल शिफ्ट के लिए फॉर्मूला है टी। हाँ, अब मैं इसको बोल लेता हूँ कि ये जो स्लैब है ना, इसकी थिकनेस हो गई 10 सेंटीमीटर, कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो d इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर, तो टी मतलब 10 सेंटीमीटर, है ना। साइन आई माइनस आर मतलब साइन आई, आई की वैल्यू है 60 डिग्री, तो वो तो मैंने लिख ली। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू लिख लेते हैं, n1 यानी कि 1 साइन आई मतलब साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू n2, n2 मतलब √3 साइन r, ओके। वैल्यू रखें तो √3/2 इज इक्वल्स टू √3 साइन r, ओके। तो यहाँ से साइन r की वैल्यू पता चल गई, कितनी, साइन r इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि r इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, कितना आ गया, 30 डिग्री। बेटा r की वैल्यू आपको मिल गई 30 डिग्री। चलो, तो साइन 60 डिग्री माइनस साइन माइनस 30 डिग्री डिवाइड बाय cos r मतलब cos ऑफ 30 डिग्री। यहाँ मुझे पता चल गया 10 सॉरी 10 साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री। या तो इनकी वैल्यू रख लो या इसको ऐसे लिख लो, 10 tan 30 डिग्री, मतलब समझ में आ गया 10/√3। तो आपको क्या समझ में आया, जो लेटरल शिफ्ट होगा वो 10/√3 सेंटीमीटर होगा। डू इट माय डियर फ्रेंड्स, राइट, बहुत सिंपल से था, आपका एप्लीकेशन भी सिखा दिया मैंने। तो याद रखना है ये फॉर्मूला आप लोगों को, लेटरल शिफ्ट है, ठीक है। किसी भी ग्लास स्लैब से पास होने के बाद कितना लेटरल शिफ्ट होता है वो है ये दिखा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, find the lateral shift of light ray while it passes through a parallel glass slab of thickness 10 centimeter placed in air, and यहाँ पर क्या बोल रखा है कि the angle of incidence in air is 60 degree, angle of incidence is 60 degree and angle of refraction is 45 डिग्री। तो यहाँ आपको दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू 60 डिग्री दी है और आर की वैल्यू दैट इज 45 डिग्री दी हुई है ना, ये आपको पहले से गिवन है।
अब आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? आपको पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा, तो लेटरल शिफ्ट कितना होगा? लेटरल शिफ्ट है d इज इक्वल टू t sin i माइनस r। i माइनस r कितना? i की वैल्यू है 60 डिग्री माइनस r की वैल्यू है 45 डिग्री, है ना? डिवाइड बाय या cos r मतलब 45 डिग्री। चलो वैल्यू रखे, t is 10 centimeter and this is sin 15 degree, okay, divide by cos 45 डिग्री वैल्यू होती है 1 by root 2, तो आंसर इज 10 root 2, ओके। और sin 15 डिग्री की यदि आपको वैल्यू याद है तो लिख सकते हो, नहीं याद है तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे याद है इसलिए लिख रहा हूँ, है ना? √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 होती है, ठीक है, ये होती है बस। तो अब मैं यहाँ से √2 से √2 कैंसिल कर सकता हूँ, आंसर आता 5 √3 माइनस 1, ये आंसर आता, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा? लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, ओके। अब और चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो वो रख सकते हैं, आंसर आ ही जाता है, ठीक है। बस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है ज्यादा, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेशन का ज्यादा नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, राइट? या फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं, एंड फाइनल आंसर इज दिस वन, राइट? दैट्स ऑल। नेक्स्ट अपेरेंट डेप्थ अब आया है। अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट शिफ्ट क्या होता है बेटा, ध्यान रखो। जब कभी भी अब एक पानी से भरे ग्लास में, है ना, पानी से भरे ग्लास में कॉइन डाल दो, है ना। अब आप कॉइन डालोगे, तो एक बार खाली ग्लास में कॉइन डालोगे तो आपको डिस्टेंस नजर आएगी, फिर आप पानी भर दो ग्लास में और फिर आप ऊपर से देखो, आपको लगेगा कि यार कॉइन जो है वो काफी पास आ गया, काफी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में कॉइन पास नहीं आता, बस उसका इमेज जो होता है वो थोड़ा क्लोज दिखाई देता है, समझ में आ रहा है? एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में वो कॉइन आपके पास नहीं आया, आपको बस दिखाई दे रहा है, अपीयर हो रहा है। ये उसकी जो डेप्थ होती है उसको हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? अपेरेंट डेप्थ, ओके। सो हियर इन इन दिस डायग्राम, आपको डायग्राम से ही समझा देता हूँ मैं डायरेक्टली। या यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। लाइट रे में क्या करो, एक लाइट रे तो ऐसे चली गई सीधी सीधी। जब कभी भी लाइट रे किसी भी मीडियम के सरफेस के नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट डेविएशन के बाहर निकल जाती है। स्पीड तो चेंज होती है लेकिन डेविएशन नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल से एंगल जीरो होती है। तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r लगाओगे, जीरो ही मिलेगा आपको, है ना? यस। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि लेट से ये लाइट रे है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे बाहर निकली, ये आ गई, है ना? तो ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये हो गई कौन सी रे? इमरजेंट रे, है ना, या फिर रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं। इनिशियली ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है? ऑब्जेक्ट की डेप्थ है डी, कितनी है? डी, ओके। तो इसकी इमेज कहाँ दिखेगी? याद रखो कि हमारी आईज जो होती है ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में देखती है। कैसे देखती है? एक स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो यदि मैं स्ट्रेट लाइन में देखूं तो मुझे समझ में आता है कि यार यहाँ पर आई है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन इस रे के रिफ्रैक्टेड रे का लंब, तो ये रिफ्रैक्टेड रे मुझे यहाँ से आती हुई अपीयर होती है, ठीक है। तो यहाँ से यदि ये आती हुई अपीयर हो रही है मतलब इमेज इसका यहाँ बनेगा, और यहाँ इसका इमेज बन रहा है मतलब इसकी डेप्थ जो है वो डी डैश है, एंड डी डैश इज लेस देन डी, राइट? आ रही बात समझ? मैं क्या कहना चाहता हूँ बेसिकली आपसे, लिसन। मेरे कहने का मतलब है कि लेट्स से दिस इज अ डेंस मीडियम, दिस इज डेंस मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम, ओके। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक लाइट रे आती है, तो एक लाइट रे जो है ना ये ऐसे चली जाती है, तो ऑब्जर्वर इस लाइट रे के अलोंग देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? उसको इसी लाइन के अलोंग दिखाई देगा। चलो अब मैंने एक और लाइट रे ले ली, ये लाइट रे है, ये ऐसे जा रही है बाहर, जा रही है। यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, भाई ये डेंस मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ऐसे आ जाएगी, समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये ऐसे। यदि यहाँ पर आई है तो आई हमेशा किधर दिखती है? आई हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखती है, तो इस लाइन के अलोंग आई देख रही है, तो आई को दिखेगा कि इमेज जो है ना, वो इमेज जो है वो इस पॉइंट पर है। समझ में आ रहा है आपको? इमेज जो है वो यहाँ बन रहा है, दिस इज इमेज। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ओके। चलो ऑब्जेक्ट की डेप्थ थी डी, और इमेज की डेप्थ है सिर्फ डी डैश, कितनी है? डी डैश, ओके, दैट्स ऑल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डी डैश जो है ना वो एक्चुअल डेप्थ नहीं है, वो सिर्फ हमें अपीयर हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ, राइट? गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? तो सिंपली स्पीकिंग कि हमें सिक्का क्या होता है? ऊपर दिखाई देता है ना। चलो ये मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया, आप कॉन्सेप्चुअली हम इसको देखते हैं, ठीक है। यस।
तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन रिलेटिव, समझ में आ रहा है आपको? यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सब कुछ स्पीड ऑफ लाइट का खेल है। किसका खेल है? स्पीड ऑफ लाइट का। ओके, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है ना कि कितना डिस्टेंस कवर करती है, राइट? तो उसी के हिसाब से ये ड्राइव है। इसके अलावा आगे स्पेरिकल मिरर का जो या स्पेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप फॉर्मूला याद रख लो, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन रिलेटिव। एन रिलेटिव मतलब रिलेटिव मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम ले रहे हैं दूसरे के रिलेटिव, यानी कि आपको यहाँ समझ में आएगा कि एन रिलेटिव का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि n2/n1 क्या करना है, समझ में आ रहा है? सॉरी सॉरी, n1/n2 मतलब जहां पर इंसिडेंट रे होती है ना, तो हमेशा मीडियम नंबर वन बोलने का, क्या बोलना है? मीडियम नंबर वन। तो आपको याद रखना है एन रिलेटिव मतलब n1/n2। n1 मतलब मीडियम ऑफ इंसिडेंस, n2 मतलब मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दैट्स ऑल। तो यही आपको ध्यान रखना है। और डी डैश का फॉर्मूला आपको क्या मिला? डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन रिलेटिव, डी अपॉन एन आई अपॉन एन आर, याद रखना है। ठीक है, D upon N relative मतलब D upon Ni by Nr. Ni is refractive index of incident medium and Nr is refractive index of refractive medium. ठीक है, यदि स्पीड की बात करें तो क्या बोलेंगे? V dash is equals to V upon N relative। ठीक है, V upon N relative। ओके, कैसे आए ये आपको आगे समझ में आ जाएगा जब हम क्या करेंगे, स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल ग्लास से बात करेंगे, यानी कि हम स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, तब ये क्लियर कर लूंगा मैं। ठीक है, यस, वी जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ये अपरेंट डेप्थ का, ओके, एंड अपरेंट स्पीड का। ओके, यस, दैट्स ऑल, एंड दिस इज रिलेटिव Ni by Nr, याद रखना है आपको। ठीक है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर अपरेंट शिफ्ट क्या होता है बेटा? अपरेंट शिफ्ट क्या होता है? मैंने बोल दिया कि यार ये सरफेस की और ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पर, तो पूरी डेप्थ थी डी, और देखा इमेज कहाँ पर? यहाँ पर। ये डेप्थ है डी डैश। शिफ्ट कितना हुआ? तो शिफ्ट को मैं बोल लेता हूँ डेल्टा एक्स बोल लो। डेल्टा एक्स ये वाला शिफ्ट हो गया, इसको मैं डेल्टा एक्स बोल लेता हूँ। तो दैट इज व्हाट? डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश, तो ये हो गया शिफ्ट। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी माइनस डी अपॉन एन रिलेटिव। ओके, एन रिलेटिव क्या लिख सकते हो इसको? तो डी कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाय एन रिलेटिव, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। ओके, ये आ गया अपना अपेरेंट शिफ्ट, यानी कि अपनी जगह से कितना ऊपर या कितना नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी, अपेरेंट शिफ्ट हमें मिल रहा है डी इंटू 1 माइनस 1 बाय एन रिलेटिव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? लेट्स मूव, चलते हैं आगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड द वाटर। तो लेट्स से ये वाटर हो गया और वाटर के अंदर 100 सेंटीमीटर अंदर पड़ा हुआ है कोई। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लो, चल, इट इज व्यूड फ्रॉम एयर, एयर मतलब बाहर से देखा, है ना? चल, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ। तो याद रखो हमेशा लाइट रे जो होती है ना वो ऑब्जेक्ट से निकलती है। कहां से? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से निकलेगी लाइट रे। लेट्स से लाइट रे जा रही है ऐसे, ओके, कहाँ है ये? वाटर में है, डेंस मीडियम में। डेंस मीडियम से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में। ये कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, ये ऐसे जा रही है, तो इमेज कहाँ दिखेगा? इमेज कुछ ऐसे यहाँ कहीं दिखाई देगा। ओके, हमें पूछ रहा है व्हाट इज द अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला देखा था, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन आई बाय एन आर, मतलब एन रिलेटिव, राइट? एन आई बाय एन आर। चलो, डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 100 सेंटीमीटर। एन आई एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। इंसिडेंट मीडियम कौन है? इंसिडेंट मीडियम इज वाटर, है ना? और याद रखना वाटर के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वाटर के लिए म्यू या फिर एन की वैल्यू होती है 4/3। एयर के लिए कितनी होती है? एयर के लिए 1 होती है ना? और ग्लास के लिए 3/2। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एन आई मतलब 4/3 डिवाइड बाय एन आर, एन आर इज 1। तो क्या मिलेगा हमें? 300 डिवाइड बाय 4, ओके, एंड दैट इज 75 सेंटीमीटर। यानी कि जो अपेरेंट डेप्थ होगी ना वो 75 सेंटीमीटर दिखाई देगी। कोई पूछे व्हाट इज द अपेरेंट शिफ्ट? अपेरेंट शिफ्ट 100 सेंटीमीटर नीचे दिखना चाहिए था, 75 सेंटीमीटर की नीचे दिख रहा है। अपेरेंट शिफ्ट इज 25 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, ओवर। लेट्स मूव। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो दिखाई दे रहा है, वाटर है और ऊपर एयर है। एयर से लाइट रेज परपेंडिकुलरली नीचे आ रही है ना? दिख रही है ये आपको? लाइट रेज आ रही है परपेंडिकुलरली नीचे, और लाइट रेज आने के बाद वाटर में एंटर करती है, तो ऑब्वियसली नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो डेविएट नहीं होगी।
आने के बाद यहाँ पर एक मिरर के ऊपर, मिरर कैसा है, कॉन्केव मिरर के ऊपर गिर रही है, ये आ गया कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है आपको, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। कितना? 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर है तो फोकस का होगा बेटा, फोकस होगा r/2, तो फोकस f इज इक्वल टू r/2, तो दैट इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ कहीं होगा, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बेटा आपको पता है जब दो लाइट रेज यदि पैरेलली इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर मिलती है, तो सॉरी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलती है। मिरर से ये रिफ्लेक्ट होगी और ये कहाँ जाके मिलेगी, फोकस पर जाकर मिलेगी। ये आ गया फोकस। चलो, एक्चुअल इमेज का बन रहा है, इमेज फॉर्म्स एट फोकस, इमेज फॉर्म्स एट फोकस। तो यहाँ मुझे समझ में आ गया बेटा कि फोकस पर इमेज बन रहा है। ओके, तो यानी कि उसकी सरफेस से नीचे कितनी डेप्थ होगी, तो बेटा ये सरफेस होगी टोटल 30 सेंटीमीटर है, कितनी, 30 सेंटीमीटर, और फोकस है 20 सेंटीमीटर। तो आई गॉट इट, दिस इज 20, डेफिनेटली हाउ मच दिस इज 10। तो मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअल में डी की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बन रहा है ना वो सरफेस से 10 सेंटीमीटर के नीचे बन रहा है। लेकिन जब कोई देखता है बाहर से तो उसको कहाँ दिखाई देगा, उसको तो अपेरेंट डेप्थ दिखाई देगी, अपेरेंट डेप्थ दिखाई देगी मतलब डी डैश दिखाई देगा, एंड डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव। ओके, म्यू रिलेटिव मतलब म्यू ऑफ इंसिडेंट मीडियम कौन सा है, वाटर, है ना, 4/3 अपॉन रिफ्रैक्टेड मीडियम दैट इज मतलब मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज एयर। यहाँ मुझे मिल गया 30/4, कितना, 30/4, यानी कि मुझे 15/2 मिला, मतलब 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि फाइनली यदि कोई भी इंसान बाहर से देख रहा है कि कहां पर इमेज बनेगा, इमेज विल फॉर्म एट 7.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस उसको इमेज दिखाई देगा। एक्चुअल में इमेज कहाँ बन रहा है, तो सरफेस से 10 सेंटीमीटर नीचे बन रहा है फोकस पर, है ना, और दिखाई कहाँ देगा, सरफेस से 7.5 सेंटीमीटर नीचे ही दिखाई देगा। दैट्स ऑल, गॉट इट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझने की जरूरत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, डायग्राम बना रखा है यहाँ पर, देखो पैरेलल लाइट रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर मिलेगी, क्योंकि पैरेलल लाइट्स आ रही थी, ठीक है, डायग्राम में दिखा रखा है। ये फोकस पर बनेगा इमेज, पर दिखाई कहाँ देगा, बाहर वाले इंसान को, तो दिखाई देगा किसी अपरेंट डेप्थ पर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, हो गया, है ना। यस, आंसर। तो आपको ये डिसाइड करना है कि पहले डी क्या है, तो डी इज इक्वल टोटल डेप्थ इज 30, और उसमें से इमेज बन रहा है 20 पर, तो 20 को माइनस कर लो, तो ये 10 सेंटीमीटर है डी की वैल्यू। ओके, तो आपको तो दिख रहा है डी डैश, वो आपको कितना मिला है, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स ऑल, यही चीज मैंने आपको अभी समझाई थी, फिर से रिवाइज करवा ली। आगे बढ़ते चलते, लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम में देखकर पता चल रहा है इन द फिगर, यहाँ पर कोई बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है, एंड हियर इज सम फिश। फिश है जो पानी के अंदर है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। और देखो जो वाटर की सरफेस है वहां से बर्ड की जो हाइट है दैट इज 36 सेंटीमीटर, और वाटर की सरफेस से बर्ड की जो सॉरी फिश की जो डेप्थ है दैट इज 36 सेंटीमीटर, दोनों सेम है, 36 36। ओके, अब आपको क्या क्या बताना है, फाइंड द अपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, अपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड आपको बतानी है, फिर आपको बताना है अपेरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, अपेरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। ओके, यस, उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश, यानी कि बर्ड अपीयर टू द फिश, फिश को बर्ड कहां पर दिखाई देगा, है ना, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू बर्ड, यानी कि बर्ड को फिश कितनी डेप्थ पर दिखाई देगी, है ना, कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देगी। ओके, या बाकी वो बाद में देखेंगे। चलो, फर्स्ट फाइंड अपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, बर्ड की अपेरेंट हाइट कितनी होगी वो बताना है, ठीक है। चलो, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस, है ना। अपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड आपको बताना है, मतलब क्या, यानी कि मान लिया कि आप जिस वाटर की सरफेस मतलब वाटर के अंदर बैठे हो, हाँ हो आप वाटर के अंदर, है ना, सॉरी आपको सिर्फ अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड बतानी है ना। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर है वाटर के अंदर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट इज बर्ड। तो बर्ड से लाइट रेज आएंगी, बर्ड से लाइट रेज आएंगी, और अंदर आने के बाद क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो एक्चुअल इमेज उसका और भी दूर दिखाई देगा। समझ आया,
यस, तो चलो मैं यहाँ पर बात करता हूँ डी डैश इज इक्वल टू डी डी अपॉन म्यू रिलेटिव मतलब एनआई अपॉन एनआर, है ना। एनआई कौन है? बर्ड इज इन एयर, तो एयर पर ही है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है ना, वो इंसिडेंट मीडियम हो गया। डी डी मतलब 36 है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये 36 है ना, 36 डिवाइड बाय एनआई बाय एनआर। एनआई कितना है? एनआई मतलब एयर का, तो दैट इज 1, और एनआर मतलब वाटर का, दैट इज 4/3। तो यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है 36 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, 48 आ रहा है बेटा, कितना? 48। तो आंसर इज 48। एक्चुअली वो क्या है, वाटर की सरफेस से 36 सेंटीमीटर ऊपर है, लेकिन उसकी अपरेंट हाइट क्या हो गई? 48 सेंटीमीटर, मतलब वाटर की सरफेस से 48 सेंटीमीटर अबव। ओके, समझ आया? दिस इज अ सिंपल थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। चलो, तो यहाँ आपको दिखाई दे दिया है, ये 48 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। नेक्स्ट पूछा है अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। तो फिश की अपरेंट डेप्थ क्या होगी? तो डी डैश, डी फिश का, फिश पानी के अंदर है, इंसिडेंट मीडियम क्या हो गया? वाटर। 36 डिवाइड बाय एनआई, एनआई मतलब वाटर, तो 4/3 डिवाइड बाय एनआर मतलब 1। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ 4 से कैंसिल करो, 12 इंटू 3, सॉरी ये 36 है ना, या तो ये आ गया 9, 27 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो यहाँ अपेरेंट डेप्थ हमें दिखाई देगी सिर्फ फिश की 27 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। ओके, बहुत सिंपल सी चीज थी, आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। यस, तो डी डैश इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 4/3। याद रखो हमेशा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो यदि डेंसर मीडियम में है तो अपेरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से कम होगी, ठीक है? और यदि वो रेयर मीडियम में है तो अपेरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? At what distance will the bird appear to the fish? यानी कि bird appear to the fish, fish को bird कहाँ दिखाई देगा? तो fish को दिखाई देगा कि यार ये तो अपना water है, तो water में तो 36 तो 36 ही रहेगा, है ना। उसके बाद उसकी apparent height कितनी आ गई थी अभी? तो वो 48 आ गई थी, दोनों को ऐड कर लो, 48 प्लस 36 you will get the answer, okay? Yes, तो यहाँ पर ये आ रहा है 48 प्लस 36, 84 सेंटीमीटर। तो उस फिश को दिखेगा कि बर्ड जो है ना, बर्ड उससे 84 सेंटीमीटर क्या है, दूर है, ठीक है। समझ में आया? फिश को लगेगा कि बर्ड उससे 84 सेंटीमीटर दूर है। नेक्स्ट, what distance will the fish appear to the bird? मतलब बर्ड देख रहा है कि फिश उसको कहाँ दिखेगी। तो इसमें सिंपल सी बात है कि अब फिश जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो 27 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ और 36 उसकी हाइट है, तो 27 प्लस 36, ओके। सो 27 प्लस 36 इज 63। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बर्ड को दिख रहा है कि फिश जो है वो 63 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो नेचर ने कितनी अद्भुत व्यवस्था की है ना, कि यहाँ पर फिश को दिखाई दे रहा है बर्ड बहुत बहुत दूर है, अभी तो वो रिलैक्स कर सकता है ना। अब बर्ड को दिखाई दे रहा है कि फिश बहुत बहुत पास है, तो वो क्या करेगी? जल्दी से स्ट्रगल करके उसको पकड़ने की कोशिश करेगी, है ना। दोनों की नजरों का धोखा है, लेकिन होता तो जस्टिस ही है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, या आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है वैसे कि क्या, इफ वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 12 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो बर्ड 12 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड चल रहा है, एंड फिश 12 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड फाइंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फाइंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, सबसे पहले ले लेते हैं फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, तो कितनी होगी? तो मैं यहाँ बोलूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। तो एक तो वो बर्ड खुद मूव कर रहा है वो स्पीड, प्लस फिश की स्पीड, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो चलो, उनमें से एक बढ़ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि फिश खुद 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो वो तो हमें करनी पड़ेगी विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। अब बर्ड क्या ऑब्जर्व करता है? एक्चुअली बर्ड 12 से चल रहा है, तो बर्ड की 12 यहाँ पर लिख ली मैंने। अब फिश उसकी तरफ किससे चढ़ रही है? तो वो तो क्या है, वो अपरेंट स्पीड है, तो वो क्या हो जाएगा? वी मतलब 12 डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव, कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है ना। और किसकी स्पीड? तो फिश की स्पीड। तो फिश क्या है? फिश ऑब्जेक्ट है, वहां से रेस स्टार्ट होती है, इंसिडेंट मीडियम है ना, तो वाटर इंसिडेंट मीडियम हो गया, तो 4/3। समझ आया आपको?
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 9 है ना, सॉरी, या तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि फिश जो है वो कहाँ है, फिश है वाटर के अंदर, तो वो इंसिडेंट मीडियम हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ये 9 into this 21 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश, खुद फिश 12 से मूव कर रही है, प्लस अब बर्ड उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी अपरेंट स्पीड, तो दैट इज 12 डिवाइड बाय उसकी अपरेंट स्पीड लिखनी पड़ेगी, तो डिवाइड बाय, अब कौन है अपरेंट स्पीड ऑफ बर्ड, तो बर्ड इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वो तो एयर में है, तो 1 डिवाइड बाय 4/3, तो क्या आ जाएगा 16, 16 दिस 28, 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, गॉट इट। so that's all, these are the answers, right? ये आपको अच्छे से समझना है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। जहाँ ऑब्जेक्ट होता है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, वहीं से हमेशा लाइट रे स्टार्ट होती है और वही इंसिडेंट मीडियम होता है, ठीक है। जहाँ ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा रिफ्रैक्टेड मीडियम होगा, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो दैट्स ऑल, यही आंसर मैंने आपको बताया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, see the figure, find the distance of the final image from the mirror, यानी कि जो आपको एक यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर दिख रहा है ना, इससे फाइनल इमेज कितना डिस्टेंस पर बन रहा है वो आपको बताना है। भाई मैं ध्यान से देख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ ये दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे स्टार्ट की, यहाँ यहाँ आके वो क्या होगी, यहाँ आके बेटा वो रिफ्रैक्ट होगी, फिर वापस एयर में आ गई, ये है ना। मुझे समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ पर ROC, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, दैट इज 20 सेंटीमीटर, है ना। ओके, अब मुझे नेक्स्ट बात करनी है कि यार ये पूरी डिस्टेंस जो है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट की मिरर से एक्चुअल डिस्टेंस 21 दे रखी है, कितनी दे रखी है 21, मैंने डी बोल दिया, दैट इज 21, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ग्लास स्लैब बीच में आ गई, ग्लास स्लैब बीच में आ गई, मुझे एक बात पता है, वहां पर क्या हो जाएगा, अपरेंट शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरेंट शिफ्ट, सॉरी लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट बात करनी है, डेल्टा एक्स, है ना। तो शिफ्ट कितना हो जाएगा बेटा, देखो शिफ्ट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये इस तरह से थोड़ा ऐसे मुड़ गया और फिर ऐसे गया, यानी कि एक्चुअली उसका शिफ्ट कितना हो रहा है ना। कि मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, 3 सेंटीमीटर टी, है ना। के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है ना, राइट, ये 3/2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बाहर वाले का 1 है ना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसका यहाँ पर इसका मतलब जैसे अपरेंट डेप्थ फाइंड किया था ना, वैसे यहाँ अपरेंट शिफ्ट फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव, तो ये 3/2, गॉट इट। यहाँ क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया, कितना, 1 सेंटीमीटर। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली लाइट रे 3 सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब से जा रही है, लेकिन वहां क्या हो जाता है, अपरेंट शिफ्ट होने की वजह से, अपरेंट शिफ्ट होने की वजह से जो है वो 1 सेंटीमीटर ही दिखाई, मतलब लाइट रे जो होती है ना, वो 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, यानी कि उसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर रहता है, कितना, 2 सेंटीमीटर। तो मतलब मुझे समझ में आ गया टोटल कितना है, 20, 20 में से 3 सेंटीमीटर की स्लैब हटा दो और 2 सेंटीमीटर का ही उसका एक्चुअल पाथ है, तो मतलब या फिर ऐसे कर सकते हो, टोटल 21 है, 21 में अपरेंट शिफ्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो उस 1 सेंटीमीटर को हटा दो, तो मतलब मिरर को लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना, मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट उससे 21 सेंटीमीटर दूर नहीं है, कि जो एक्चुअल डेप्थ उसको डिस्टेंस दिखेगी, दैट विल बी, यानी कि उसको यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू, यू क्या होता है, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो उसको दिखाई देगी कितनी, वो उसको दिखाई देगी माइनस ऑफ 20, क्यों 20, टोटल तो 21 है, 20 ही क्यों दिखाई देगी, 1 सेंटीमीटर का क्या हो गया, अपरेंट शिफ्ट हो गया, तो वो उसको हटाना पड़ेगा, समझ में आ गया। यस, क्योंकि डेंस मीडियम है, तो डेंस मीडियम है तो 1 सेंटीमीटर का अपरेंट शिफ्ट हो जाएगा, और अपरेंट शिफ्ट होने का मतलब क्या है, जो एक्चुअल डेप्थ होती है उससे कम दिखाई देती है ना। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है, उसमें से 1 सेंटीमीटर की कम डेप्थ दिखाई देगी, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो एक्चुअल डेप्थ दिखाई देगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर है। और मुझे एक बात पता है क्या, कि यार 20 सेंटीमीटर ही तो क्या है, ये रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, दैट्स ऑल, है ना। कंकेव मिरर में जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है वही इमेज बनेगा यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा, तो आंसर फाइनल इमेज विल फॉर्म एट द सेम पोजीशन एज द ऑब्जेक्ट, ओके, जहां ऑब्जेक्ट है इमेज भी वही बनेगा, ठीक है। यस, रियल इमेज बन रहा है ऑब्वियसली, है ना।
तो दिखाई दे रहा है शिफ्ट आ गया सबसे पहले, शिफ्ट यहाँ पर कितना आ रहा है, तो इसको जैसे ही सॉल्व करते हो आपको 1 सेंटीमीटर दिखता है, कितना 1 सेंटीमीटर, तो 21 में से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ मुझे पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, है ना। यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर पर रखता है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, यही सिंपल सी बात थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मुझे विश्वास है ना। चलो आगे बढ़े, जल्दी से बात करते हैं कि hence the light rays will retrace its path and image will form a same as the object, यानी कि जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज बनेगी, दैट्स ऑल, है ना। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब का मतलब क्या है, मतलब एक स्लैब, दो स्लैब, तीन स्लैब, बहुत सारी स्लैब्स को आपस में चिपका के रख दिया, तो टोटल क्या मतलब उसका रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लेट से ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है मतलब यहाँ पर है आई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आई, हो गई आई, ओके, देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर आ गया, ये आई होगी, और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ओके। अब ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा वो कितना दूर दिखाई देगा, कितना उसका शिफ्ट होगा, है ना, वो सब देखना है। तो मैंने बोल दिया कि ग्लास स्लैब्स है, यहाँ पर ये जो मीडियम है ना ये एन नॉट है, जहाँ पर ऑब्जर्वर है वो मीडियम है एन नॉट, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है दैट मीडियम इज एन वन, दैट मीडियम इज एन वन। अब क्या करेंगे, अब आपको बताना है कि एक्चुअल कितना डिस्टेंस पर दिखाई देगा। तो ऐसे देखा जाए T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे दिखाई देना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरेंट डेप्थ की वजह से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से एक डिफरेंट डेप्थ दिखाई देगी, डिफरेंट डिस्टेंस दिखाई देगी, उसको हम अपरेंट डेप्थ बोलते हैं। दैट इज सबसे पहले टी, सबसे पहले T1 स्लैब है, थिकनेस देखो, पहली स्लैब की थिकनेस कितनी है T1, ये वाली, मैं क्या लिखूंगा N1 हाँ, T1 अपॉन N1, मतलब मैं क्या लिखता हूँ, इंसिडेंट मीडियम, इंसिडेंट मीडियम कौन है, इंसिडेंट मीडियम इस वाले के लिए इंसिडेंट मीडियम कौन हो रहा है, ये N1, है ना, तो मैं लिख लूंगा T1 अपॉन N1, और लास्ट इमर्जेंट मीडियम कौन सा है, इमर्जेंट ऑब्जर्वर वाला मीडियम है, कौन सा ऑब्जर्वर, वो कौन सा है, N0, तो डिवाइड बाय N0, ओके, फिर प्लस T2, तो T2 अपॉन यहाँ पर क्या है N2 रिलेटिव, मतलब मुझे समझ में आ गया N2 रिलेटिव मतलब ये वाली स्लैब पर देख रहे हैं रिफ्रैक्शन, ये वाली पर, तो यहाँ पर इंसिडेंट मीडियम हो गया N2 और फाइनल इमर्जेंट मीडियम कौन सा N0, तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा N2 बाय N0, फिर नंबर थर्ड T3 अपॉन N3 अपॉन N0, इस तरह से हमें इसको डील करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तो यही हमें क्या दे देगा, आंसर दे देगा, और ये मुझे मिलेगा अपरेंट डिस्टेंस, अपरेंट डेप्थ, ओके, दैट्स ऑल। सो ये देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, है ना, N1 relative means N1 by N0, N2 relative is N2 by N0, N3 relative N3 by N0, okay, right, ऑब्जर्वर वाला मीडियम के रिलेटिव सारा आएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, राइट, लेट्स मूव नेक्स्ट, अपरेंट शिफ्ट, तो अपरेंट शिफ्ट वही फॉर्मूला है यार बेटा, क्या होता है डी माइनस डी डैश, तो वैसे ही T1 इंटू वन माइनस वन बाय म्यू रिलेटिव प्लस T2 इंटू वन माइनस वन बाय म्यू रिलेटिव, मतलब सारी स्लैब से इंडिविजुअली हमने अपरेंट शिफ्ट निकाल के ऐड कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसी भी हालत में, है ना। N1 रिलेटिव क्या है, N1 अपॉन N0, N2 रिलेटिव N2 अपॉन N0, समझ में आ रहा है ना। तो ऑब्जर्वर मीडियम है वो है हमेशा रेफरेंस मीडियम रहेगा, उसके रिलेटिव ही देख रहे हैं, ठीक है। ओके, आपके सामने एक क्वेश्चन है, see the figure, find the apparent depth of the object seen below the surface AB, ये AB सरफेस है ना, ऑब्जर्वर का है, AB सरफेस के ऊपर की तरफ ऑब्जर्वर है, और वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.8, ओके, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, चलो फटाफट देखते हैं, मैं मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, चलो फाइंड करते हैं, D डैश इज इक्वल्स टू D1 डैश प्लस D2 डैश, है ना, D1 डैश प्लस D2 डैश, चलो ठीक है, D1 डैश क्या होता है, D1, यानी कि मैं ले लेता हूँ ये फर्स्ट वाला मीडियम, ये वाला, है ना, ये वाला, कितना आ जाएगा, इसकी जो थिकनेस है दैट इज 20, डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव मतलब इस ये इंसिडेंट मीडियम मतलब 2, एंड फाइनल ऑब्जर्वर वाला मीडियम इज 1.8, प्लस सेकेंड नंबर वाला ये वाला मीडियम की देखते हैं, तो यहाँ पर इसकी कितनी 15, यहाँ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय कितना है म्यू रिलेटिव 1.5 डिवाइड बाय 1.8, गॉट इट,
बस कुछ नहीं करना है, आप सिंपली इसको सॉल्व करना है। इस पॉइंट को उड़ाओ, यहाँ 0 आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा लो, ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये 15 से ये 15 कैंसिल, ठीक है। क्या आ रहा है, ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये 18 ऊपर चला गया, प्लस यहाँ पर भी 18 ऊपर, टोटल 36 सेंटीमीटर। कितना एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 20 प्लस 15 35 होना चाहिए था, लेकिन दिख कितना रहा है, 36 सेंटीमीटर दूर दिख, ठीक है। दैट्स ऑल। सो अपरेंट डेप्थ जो दिख रही है उसकी कितनी दिख रही है, 36 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। ओवर। ठीक है, फाइनली 36 सेंटीमीटर इज द आंसर। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। मैंने बोल दिया कि लेट से मेरे पास क्या है, देखो एक डेंस मीडियम है, सॉरी मिटेगा नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको वैसे मिटाना पड़ेगा इरेजर से, है ना। यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। लेट्स से देयर इज अ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से यदि लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ गई, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या हो जाएगा कि ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम के लिए क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो लाइट रे जाएगी ऐसे, यानी कि नॉर्मल से दूर हटके। मैं बोलूंगा एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, है ना। यस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस आई की वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ, मैं इस आई की वैल्यू क्या करता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ। मतलब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे को ऐसे ऐसे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता जाता हूँ। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी कि ये जो लाइट रे आ रही है ना, ये ऐसे जाने के बाद वो लाइट रे जो है इस सरफेस के पैरेलली जाने लग जाए, ऐसे, समझ आया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, दैट इज 90 डिग्री बन गया, याद रखना, ठीक है। यस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के पैरेलली जाने लग जाए। पर ये कब पॉसिबल है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या हो, लाइट रे एंटर करे, तब ही यह पॉसिबल है, ठीक है। यस। यस। तो अब हमें समझ में आ गया कि इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। याद रखना कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री और द रिफ्रैक्टेड रेज go along the surface of the means intermediate surface of the mediums, right? Then it will be what, it is called critical angle. Okay, that is critical angle। बस यही है ना। अब कैसे फाइंड करें, स्नेल्स लॉ यूज करके फाइंड करेंगे। कैसे, n1 sin i, तो n1 sin, n1 को मैं nd लिख रहा हूँ, मतलब डेंसर मीडियम। n1 sin i, i मतलब मैं c लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। that will be equal to n2, n2 मतलब रेयर मीडियम, so nr sin, sin कितना 90 डिग्री, बेटा मैंने पहले ही बोला कि 90 डिग्री होता है, तो i is equals to c है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ sin c, sin c is nr by nd, यानी कि रेयर मीडियम डिवाइड बाय डेंसर मीडियम। ओके, यहाँ से कोई क्रिटिकल एंगल के वैल्यू पूछे तो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स nr बाय nc, nr बाय nd, सॉरी nr बाय nd, समझ आया। मतलब रेशियो ऑफ रेयर मीडियम टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम टू द इंसिडेंट मीडियम, है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ nr बाय nd, दैट्स ऑल। तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, है ना। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, यहाँ मैंने प्रॉपरली भी लिखा है आपके लिए, E is equals to sin inverse nr by nd, ठीक है। कैसे है आपको पता ही है, हमारा फॉर्मूला होता है n1 sin i, तो n1 मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डेंसर मीडियम से, तो nd sin, है ना। I is equals to c है, I को मैं क्रिटिकल एंगल, तो ये c equals to nr रिफ्रैक्टिव मीडियम, यानी कि वो रेयर मीडियम है, एंड दैट इज साइन r, r की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है C is equals to sin inverse, ये लिखा हुआ है बस, that's all, this is the formula you need to remember, okay। यदि यदि मैं इस लाइट रे को क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट करता हूं,
तो लाइट रे जो है वो दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं है, वो रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में आ जाती है। तो देखो दिखाई दे रहा है, ये क्रिटिकल एंगल पर लाइट रे जा रही है तो सरफेस के अलोंग मूव करेगी ऐसे, है ना। पर यदि लाइट रे ऐसे जा रही है एंड दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इन दैट सिचुएशन लाइट रे उस मीडियम दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं, वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट, यानी कि अब इस लाइट रे के लिए जो सरफेस है ना, इंटरमीडिएट सरफेस वाटर और मतलब डेंसर और रेयर मीडियम की, तो वो क्या करती है? वो एक तरह से मिरर का काम करती है। क्या करती है? मिरर का काम करने लगती है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता ही है ना, आई विल बी इक्वल टू आर, राइट? यस, क्यों? क्योंकि ये मिरर की तरह काम करेगा। ओके, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या? जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। दैट्स ऑल, टीआईआर भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम n is equals to 2। तो आपको refractive index of medium n is equals to 2 if the light is incident in vacuum। बेटा इंसिडेंट लाइट रे का है वैक्यूम में, है ना। और वैक्यूम से कहाँ जा रही है? तो वो रिफ्रैक्ट मतलब वो किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाले मीडियम में इंसिडेंट कर रही है, मेकिंग एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल। मतलब कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दे रखा है वो 2c दे रखा है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है, करें। c की वैल्यू क्या होती है? तो c की वैल्यू होती है nt sin c इज इक्वल्स टू nr sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है। मतलब यहाँ पर आ गई sin c की वैल्यू कितनी आई? दैट इज nr बाय nd। वैक्यूम के लिए 1 लेते हैं हमेशा, और d मतलब डेंस मीडियम के लिए हमेशा 2 आता है। तो कितना आ गया? 2। मतलब मुझे sin c की वैल्यू पता चल गई। c की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल जो है वो 30 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? दैट इज 2c। 2c मतलब 60 डिग्री हो गया। कितना? 60 डिग्री। तो अब पता चल रहा है कि लाइट रे जो है ना, वो लाइट रे रेयर मीडियम से इंसिडेंट हो रही है 60 डिग्री पर। तो ये कैसा है? ये रेयर मीडियम है ना। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब रेयर मीडियम 60 डिग्री। और यहाँ से डेंसर मीडियम n इज इक्वल टू 2 में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी। यहाँ पर ये आ गया r, ओके। और ये क्या आ गया? ये है n इज इक्वल, यहाँ n इज इक्वल टू 1। चलो, आपको क्या बताना है कि कितना एंगल बनाएगी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। चलो, 1 sin i मतलब 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 sin r। r तो फाइंड करना है। चलो, क्या आ रहा है? sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या लिखोगे? √3/2 इज इक्वल्स टू 2 sin r। यहाँ से sin r की वैल्यू पता चल गई। sin r is equals to √3/4, okay, and that's all. I'm getting the value of r is equals to sin inverse √3/4. So this is the answer. I think you are getting it very well, my dear friends. You can do it, okay। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना, नीट ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है आपसे और आप अच्छे से कर सकते हो। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ओके। तो मन से कभी नहीं हारना है ना। हमेशा कोशिश करना है। यू कैन डू इट, ओके। तो 1 साइंस, या जैसे कि मैंने बताया, फाइनल आंसर आया था √3/4, वही आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द सिंपल थिंग, ऑल ऑफ यू कैन डू इट वेरी वेल, ओके। यस, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, what should be the value of theta so that the light entering normally through the surface AC of the prism, और उसका n दे रखा है 3/2, does not cross the second refracting surface AB। क्या आप सोच रहे होंगे सर क्या बार बार नाक नाक पकड़ते रहते हो, क्या बार बार नाक खुजलाते रहते हो, है ना। एक्चुअली क्या है कि जब मैं बोलता हूँ ना, तो लाइक बोलते वक्त क्या है कि मैं थोड़ा दम लगा के बोल रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? वाइब्रेशंस हो रहा है, और वाइब्रेशंस होने से मेरे को नाक को गुदगुदी हो रही है ना। क्या, तो आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ओके। तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, what should be the value of angle theta so that the light entering normally through the surface AC of the prism n is equals to 3/2 does not cross the second surface। देखो, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्लियरली। मैं लेजर ले लेता हूँ
और यहाँ देखो ये इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही है, जब भी रे नॉर्मली आती है तो क्या होता है, वो डिविएट नहीं होती, सीधी सीधी जाती है, तो ये सीधी सीधी गई। अब ये दूसरी वाली सरफेस हो गई, दूसरी वाली सरफेस पर जैसे ही टकराएगी ना, टकराने के बाद ये लाइट रे बाहर नहीं निकल रही, इसी सरफेस के अलोंग जा रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि लाइट डज नॉट क्रॉस द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो दूसरी वाली सरफेस को क्रॉस ही नहीं कर पाती, है ना। चलो तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ, लाइट रे है, लाइट रे यहाँ से आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिख लिया मैंने, और ये चली गई इस तरफ। समझ में आया आपको, ये इंसिडेंट रे के एंड ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल। चलो बात करें, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सेकंड वाली सरफेस के लिए फिर से ये वाली क्या है, ये इंसिडेंट रे, और ये वाली क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो मेरे को ये पूछा है कि डज नॉट क्रॉस द सेकंड, है ना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, कि दूसरे वाले को क्या कर पाए, क्रॉस ही ना कर पाए। तो इसके लिए मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि यार क्रिटिकल एंगल ले लो, क्या ले लो, क्रिटिकल एंगल पे यदि इंसिडेंट हो तो आंसर आ जाएगा। मैं बोलूंगा आई की वैल्यू, सॉरी ये जो मैंने फर्स्ट वाली सरफेस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां आई की वैल्यू जो होनी चाहिए ना, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होनी चाहिए, कितनी, क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब देखो ज्योमेट्री देखते हैं, बेटा ज्योमेट्री, ये हो गया नॉर्मल, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। अब मुझे पता है कि यदि मैं यहाँ पर थीटा लिखता हूँ, तो ये एंगल भी हो गया थीटा, तो ये नॉर्मल है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब तो एक बात पता चल गया, आई इज इक्वल्स टू सी है ना, आई इज इक्वल्स टू सी है, और उसकी वैल्यू है 90 माइनस थीटा, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, सिंपल सी बात है। तो मुझे समझ में आ गया कि आई इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। मतलब मुझे एक बात पता चल गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, वो मिनिमम कितना होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर, उससे ज्यादा होगा चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होने से क्या फायदा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा टीआई या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और दूसरी वाली सरफेस जो एबी सरफेस है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है, राइट। या तो क्रिटिकल एंगल हो या उससे ज्यादा हो, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको इक्वल लिखो, आप ग्रेटर देन और इक्वल लिख सकते हो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, दैट इज व्हाट, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और उसकी वैल्यू कितनी है, और उसकी वैल्यू मतलब ये आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी आ रही है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 90 माइनस थीटा, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। समझ आ गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेते हैं, कर ले, चलो मुझे आता है कैसे फाइंड करते हैं, मुझे पता है कैसे करूं, n1 sin i, है ना, n1 sin i is equals to n2 sin r, मतलब n2 sin c। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लूंगा कि n1 मतलब क्या, हम इस ए बी सरफेस की बात कर रहे हैं, ए बी सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं ये सारी चीजें लिख रखी है, तो इसलिए मैं इतना फालतू में इतना लिख के टाइम वेस्ट नहीं करता, फटाफट चलते हैं, है ना। यस, तो मैं मुझे पता चल गया आई की वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा, है ना, कैसे पता चला, ज्योमेट्री से पता चला, राइट। रिमेंबर, यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है साफ साफ, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो आई की वैल्यू 90 माइनस थीटा हो जाएगी, आई विल बी 90 माइनस थीटा। ओके, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक बात पता है कि रिक्वायर्ड कंडीशन मतलब कि दूसरी एबी सरफेस को क्रॉस ना कर पाए, उसके लिए टीआईआर होना चाहिए, तो टीआईआर के लिए क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन सी, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, उसकी वैल्यू सी से ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए, या फिर ग्रेटर देन हो तो ज्यादा अच्छा है ना, दूसरी सरफेस को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल साइन लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू सी से यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो हमें पता है क्या, हम जानते हैं दोनों तरफ आप साइन से मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन सी से ज्यादा, ओके, राइट। अब नेक्स्ट 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ओके। और साइन सी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आप जानते हो n1 sin i मतलब 3/2 साइन सी इज इक्वल्स टू 1 मतलब बाहर वाला मीडियम, एंड साइन 90 डिग्री, समझ में आया ना। ये तो है ग्लास मतलब प्रिज्म के अंदर इंसिडेंट मीडियम, और ये प्रिज्म के बाहर रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्ट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू मिली थी हमें, कितनी मिली 2/3, तो वही वैल्यू रखी है यहाँ पर, और कुछ नहीं। साइन सी की वैल्यू क्या है, आपने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी की वैल्यू कितनी आई 2/3, कैसे आई, स्नेल्स लॉ से आई, कैसे आई, स्नेल्स लॉ। ओके, यहाँ रख लो वैल्यू, है ना। साइन सी की वैल्यू कितनी होती है 2/3, ये 2/3।
मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि cos थीटा की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2/3, तो थीटा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन cos इनवर्स 2/3। समझ आया? दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। ओके, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना? यस, आगे चलते हैं। तो क्या समझ में आ गया आपको? है ना? सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, राइट? तो नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब मैं प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ बेटा। प्रिज्म प्रिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। प्रिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, या प्रिज्म होता क्या है? सबसे पहले प्रिज्म आप सब लोगों ने देखा होगा, इट इज लाइक पिरामिड बोल सकते हैं ना, टेट्रागोनल भी हो सकता है ना? सो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक प्रिज्म जो होता है ना वो इस तरह से एंगल होता है और वो थोड़ा एक्सटेंडेड होता है इस तरह से। ये देखो, ये डायग्राम में दिखा रखा है, ये 3D व्यू दिखा रखा है इसका। ये ट्रायंगल वाली सरफेस हो गई, ये अंदर की तरफ ऐसे एक्सटेंडेड है। ठीक है, यस। अब मुझे क्या करना है? अ होमोजेनस सॉलिड ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस। समझ में आया? ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ये क्या बन गया? ऐसे पूरा एक ऐसे बन गया ये प्रिज्म। ठीक है, सारी सर्फेसेस कैसी होती हैं? रिफ्रैक्टिंग होती है, मतलब ये ग्लास का बना होता है जनरली। ठीक है, ओके, लेट्स से दिस इज इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे जा रही है, तो कभी भी क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई बोल लेता हूँ। क्या बोल लेता हूँ? आई। अब ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होके ये गई इस तरफ। समझ आया? इंसिडेंट रे है और ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन उधर गई नहीं, गई किधर? इस तरफ। ये रिफ्रैक्ट होगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर बोल लिया। तो कैसे फाइंड करें? आपको पता ही है, 1 sin i इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं? 1 sin i इज इक्वल्स टू n, अंदर वाले का जो भी मीडियम है दैट इज n लिख लिया मैंने। n लिख लो चाहे म्यू लिख लो, म्यू लिख लो बेटर है। म्यू या n, जो भी आपको पसंद है, मैं n लिख रहा हूँ, n sin r। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। ओके, r आपको पता चल गया, ये r आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब ये लाइट रे यहाँ से जा रही है दूसरी वाली सरफेस पर। मैंने बोल दिया लेट्स से दिस एंगल इज सम r डैश। क्या है? ये r डैश एंगल है। और जब ये वापस यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है तो मुझे पता है कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंस से रेयर मीडियम में आ रही है, तो ये ऐसे जा रही है। तो ये जो एंगल है ना नॉर्मल से बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, राइट? तो ये इमर्जेंट रे है, ये एंगल बना रही है नॉर्मल से ई। इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे क्या? n sin r डैश, n sin r डैश इज इक्वल्स टू 1 sin e। समझ आया आपको? n sin r डैश इज इक्वल्स टू 1 sin e। ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक स्नेल्स लॉ से हमने ये डिराइव किया है। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। अब एक और बात ध्यान रखो कि जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ प्रिज्म। याद रखना है इस चीज। एंगल ऑफ प्रिज्म को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हियर, या तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ है? यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म ये रहा। ठीक है, तो PQ सरफेस एंड PR सरफेस आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ये एंगल ए जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंगल ऑफ प्रिज्म। याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, या तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द मोनोक्रोमेटिक और सिंगल वेवलेंथ। मतलब मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या? एक सिंगल वेवलेंथ, यानी कि व्हाइट लाइट समझ लो आप। ठीक है, मतलब एक लाइट जो सिंगल वेवलेंथ रखती है ना, तो वो लाइट रे जा रही है और वो क्या हो रही है? वो रिफ्रैक्ट हो रही है ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? प्रिज्म से रिफ्रैक्ट हो रही है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो लिसन, यहाँ पर मुझे समझ में आया एक्चुअल में लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन फाइनली लाइट रे जा किधर रही है? इधर। को मैं एक्सटेंड करूँ, ये इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बोल लो या डॉ बोल लो। ठीक है, दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको फाइंड करना है ना, इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, देखो, डेल्टा इज इक्वल्स टू, है ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल ज्योमेट्री लगा रहे हैं और कुछ नहीं। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। ओके, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, यही क्या होता है? ये होता है डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन। और हमें एक बात ध्यान रखनी है, आर वन प्लस आर टू की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? ए के बराबर। क्यों? ज्योमेट्री से बेटा, ज्योमेट्री से, है ना? ओके, ये क्या आ गया? ये आर वन है, ये आर वन है, ये आर टू है, और ये क्या हो गया? लेट्स से दिस इज सम एंगल अल्फा।
ओके। आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे एंगल्स ये चलो इसकी ज्योमेट्री आप लोगों को डिटेल लेक्चर में समझाऊंगा। यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं बेटा, आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है, तो आपको सिर्फ याद रखना चाहिए अभी के लिए। ज्यादा टाइम भी नहीं होता हमारे सामने कि इतना इतना सब कुछ वो करें। हाँ चलो फटाफट निपटाते हैं। तो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा A के बराबर होगी, के बराबर A के बराबर होगी। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ I प्लस E इज ओके माइनस R1 प्लस R2, इसको मैं लिख सकता हूँ A। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया? आई डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। दैट्स ऑल। यही है एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। ओके। नेक्स्ट, ये जो है ये कैसा कर्व बनाता है बेटा, याद रखो हमेशा। और जितना एंगल ऑफ, देखो यदि यहाँ पर एयर है और लास्ट में सेकंड सरफेस के बाद भी एयर है ना, तो याद रखो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, उतना का उतना एंगल ऑफ इमर्जेंट भी होता है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यार ऐसा जब भी हो रहा है ना, तो देखो लाइट रे ये इंसिडेंट हो रही है, तो ये ई है, यदि आई मिनिमम, ये हमेशा ऐसा कर्व बोलता है। मतलब हर एक हर एक पाथ के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दो एंगल ऑफ इमर्जेंट होते हैं। यानी कि यदि यहाँ पर किसी कोई रे यदि आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो उसका एंगल ऑफ इमर्जेंट ई होगा, और ई एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो आई उसका एंगल ऑफ इमर्जेंट है। ठीक है, याद रखना ये आपको। ठीक है, इस तरह का क्या आता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम शो कर सकते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन में इस तरह का एंगल आता है ना। यानी कि यदि आई एंगल पर यदि आप लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो उसके लिए कुछ डेल्टा क्या है, डेल्टा उसके लिए कुछ डेविएशन है, और उसके लिए जो ई मिल रहा है ना, यदि उसी ई पर यदि लाइट रे को मैं इंसिडेंट करता हूँ, तो भी डेविएशन मुझे सेम ही मिलता है। ठीक है? तो सिर्फ एक ऐसा एंगल होता है मिनिमम डेविएशन के लिए, जो आई आता है, आई मिनिमम, राइट। सिर्फ उसी के लिए सिर्फ एक ही एंगल मिलता है, उसके लिए आई इज इक्वल। ये मेरे दोस्तों, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, यानी कि फाइनली आप ये याद रख सकते हो, I प्लस ई माइनस ए इज एंगल ऑफ डेविएशन। बाकी ये कर्व की शक्ल देख लो, ये शक्ल याद रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। मतलब हम बात कर रहे हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन देन आई इज इक्वल टू ई। याद रखना जब कभी भी डेल्टा मिनिमम के लिए पूछे, तो आप आई इक्वल टू ई रख लेना। समझ आया? यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 एंड आई इज इक्वल टू ई, ये रख लोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, राइट। तो आपको क्या समझ में आया कि आई इज इक्वल टू ई रख रहे हो, मतलब कि आपको मिनिमम डेविएशन के लिए लिखना है, तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2 इंटू आई मिनिमम। क्यों? क्योंकि आई प्लस ई माइनस ए होता था ना, आई प्लस ई को 2 आई लिख लिया, ठीक है, माइनस ए। अब इसको आप आई आई को क्या लिख सकते हो, आई फॉर मिनिमम डेविएशन, दैट इज क्या लिखूंगा मैं, डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2, ऐसा लिख सकते हो आप इस फॉर्मूला को। डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। ठीक है, तो आपको ये क्या मिलेगा कि डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2 आई मिनिमम प्लस माइनस माइनस ए। कैसे आया? सिंपल है यार, आपके पास फॉर्मूला था, क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये फॉर्मूला था। यदि आई इज इक्वल टू ई हो गया, तो ये क्या मिल गया, डेल्टा इज इक्वल टू 2 आई माइनस ए। ई लगाओगे ये मिनिमम डेविएशन के लिए, इसके लिए R1 इज इक्वल टू R2 होता है। ठीक है, यस। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है सारी चीजें, है ना। यदि मैं स्नेल्स लॉ यूज करूँ, स्नेल्स लॉ से मुझे क्या मिलता है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार आई मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है ना, R1 प्लस R2 होता है ए, एंड R1 इज इक्वल टू R2 होगा जब मिनिमम डेविएशन होगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसका 2R इज इक्वल टू ए। तो R की वैल्यू मुझे मिलती है a बाई 2, कितनी मिलती है बेटा, a बाई 2। ठीक है, दैट्स ऑल। चलो इसको यूज करते हैं। मुझे पता है क्या, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, है ना, यही मिलता है। ओके, अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ N1, है ना, साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दिख रहा है आपको, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, ये मैं लिख लूंगा साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर N2 लिखा है, तो इसको मैंने लिख लिया N2 साइन आर, साइन आर मैंने देखो बता दिया, आर की वैल्यू ए बाई 2 है, तो N2 साइन आर, मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट विल बी इक्वल टू N2 साइन ए बाई 2, है ना।
जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एन रिलेटिव इज साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। ओके, आ रही बात समझ में? ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको ये एंगल जो है वो बहुत छोटी वैल्यूज ना दे रखी हो, उस कंडीशन में आपको ये हर हाल में फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, एन रिलेटिव क्या हो गया, एन रिलेटिव इज व्हाट, क्या हो गया, ये हो गया n2 बाय n1। ठीक है, सारी बात समझ में? यानी कि सिंपल s को ऐसे याद रख सकते हैं, n2 इज प्रिज्म और n1 इज मीडियम। तो यानी कि सराउंडिंग बोल सकते हैं। तो n रिलेटिव इज n प्रिज्म अपॉन n सराउंडिंग, याद रख लेना, प्रिज्म डिवाइड बाय सराउंडिंग। ओके, यस। तो ये n रिलेटिव की वैल्यू आ रही है दिस वन, a प्लस डेल m डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय sin a बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होती है, a की लार्ज वैल्यू दे रखी होती है, यूज करना पड़ता है। पर यदि यदि a की वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल, 3 डिग्री 4 डिग्री मतलब 10 डिग्री से छोटा है, तब क्या होगा, हम साइन थीटा को थीटा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? When theta is very very small, sin theta can be written as theta। कब? जब theta is very very small, है ना, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तब हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ लिख लूंगा a प्लस डॉ m बाई 2 डिवाइड बाय a बाई 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल फॉर्मूला ये मिलता है, डॉ m मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज n रिलेटिव माइनस 1 इंटू a। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब लेस देन 10 डिग्री होगा, तभी यूज करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1 इंटू a। ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना है, बहुत बहुत सिंपल है। ओके, एंड यू कैन डू इट। सो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने, ऐसा नहीं एक फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, दोनों याद रखने। ठीक है, व्हाट इज एन रिलेटिव, एन रिलेटिव इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब एयर, समझ लो। यस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, आपको ए 60 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पता चलेगा कि एंगल ऑफ मतलब प्रिज्म इज लार्ज। अब बोल रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 3/2 दे रखा है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू गेट द मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन चाहिए तो क्या करोगे, मिनिमम डेविएशन चाहिए तो अब एक ही फॉर्मूला है आपके पास, कौन सा, ए इज लार्ज। यदि ए लार्ज होता है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एन रिलेटिव दैट विल बी इक्वल टू, या आप चाहो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखना तो आप ऐसे कर सकते हो क्या, कि आई जो होता है ना, दैट इज डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाय 2 होता है, इतना ध्यान में रख लो। ठीक है, यस, आ रही बात समझ में? यस, तो आप कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको ये दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम डेविएशन अज्यूमिंग द सराउंडिंग मीडियम एयर इज इक्वल टू 1। तो आप स्नेल्स लॉ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। यस, तो हमें पता है मिनिमम डेविएशन के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, r1 इज इक्वल टू r2 a बाय 2, है ना, यही होती है। डायरेक्टली मैंने यूज कर लिया। देखो i इज इक्वल टू e होता है, और दूसरी चीज r1 इज इक्वल टू r2 होता है। तो हमें पता है R1 प्लस R2 की वैल्यू A होती है, या मतलब 2R की वैल्यू हो गई A, R की वैल्यू A बाई 2, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होना चाहिए वो A बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, R1 की वैल्यू ले लो, R2 की वैल्यू ले लो, दोनों A बाई 2 यानी 30 डिग्री, A 60 डिग्री दे ही रखा है। अब क्या करोगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा फॉर्मूला यदि याद नहीं रखना चाहते हो, स्नेल्स लॉ याद रखो, है ना। तो क्या लिखूंगा, बाहर से आ रही है 1 sin i इज इक्वल टू म्यू sin r, मतलब 3/2 प्रिज्म में एंटर कर गई और r की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन दिस। तो हमें आ रहा है क्या, कि i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, समझ में आ गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया वो हो गया साइन इनवर्स 3/4। ओके, दैट्स ऑल, ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक तो हो गया। अब बोल रहा है फाइंड द मिनिमम डेविएशन अज्यूम द सराउंडिंग मीडियम टू बी एयर। आपको बताना है कि मिनिमम डेविएशन कितना होगा। तो अब आपको सॉल्व करना है, डॉ मिनिमम इज इक्वल्स टू 2i मिनिमम माइनस ए। समझ में आया? जब कभी भी जब कभी भी थोड़ा लार्ज क्या होता है, लार्ज एंगल ऑफ ये प्रिज्म दे रखा होता है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये पीछे हमने डिराइव किया था, याद है आपको, कहाँ किया था, या ये आपको दिख रहा है ना, इसके बाद ये रहा फॉर्मूला, है ना। यहाँ ये वाला फॉर्मूला भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कब होगा, जब ए इज लार्ज यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज लार्ज, 10 डिग्री से बड़ा हो, तब इसको यूज करना है। ठीक है,
छोटा हो तो नीचे सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला, जब 10 डिग्री से छोटा हो तो ये फॉर्मूला। ओके, यस, तो यहाँ हमें पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, डाउ मिनिमम इज इक्वल टू 2i मिनिमम माइनस ए, वैल्यू रख लो। तो यहाँ क्या आएगी, 2 साइन इनवर्स 3/4 माइनस ए की वैल्यू 16। यहाँ रख लिया, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको ऑप्शन में ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा एंड दिस इज द आंसर। ओके, दैट्स ऑल। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 2-3 क्वेश्चंस और बाकी, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, find the deviation caused by prism having refractive index 4। देखो refractive index, सॉरी, यहाँ refracting angle दे रखा है आपको 4, है ना। having refractive index is 3/2। तो ये find the deviation caused by prism having angle, एक्चुअली ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्या है ये, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये डायग्राम दे रखा है, उससे पता चल रहा है ना। लैंग्वेज में मत जाओ, डायग्राम में दे रखा है रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ प्रिज्म इज 4, मतलब वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। मतलब हम यहाँ ये फाइंड कर सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू, म्यू रिलेटिव माइनस 1 इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म। एन रिलेटिव कितना होगा, एन प्रिज्म डिवाइड बाय एयर, 3/2 डिवाइड बाय एयर मतलब 1, तो कोई मतलब नहीं, इनटू ओ, तो क्या आ रहा है ये, 1/2 डिग्री आंसर। ओके, दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्शन, बेटा डिस्पर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिस्पर्शन क्या होता है बेटा, कभी आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा है, रेनबो, राइट। तो रेनबो क्यों आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन, है ना। जब कभी भी क्या होता है कि लेट से बारिश हो रही है, या फिर क्या हो रहा है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी कि जो ऑस वगैरह की बूंदे जो होती है ना, वाटर पार्टिकल जो है वो एयर में, तो लाइट रेज जो सन से आ रही है ना, सन से आने के बाद वो क्या होती है, वो उन वाटर पार्टिकल्स में क्या होती है, वाटर ड्रॉप्स में क्या होती है, पास होती है, और वहां से वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है, डेविएट होने पर क्या होता है, उसका एक लाइट रे होती है ना, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में विबग्योर, सारे कलर उसमें होते हैं। व्हाइट लाइट में क्या होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट से लेकर रेड तक सारे कलर वहां क्या होते हैं, उसमें होते हैं। तो क्या होता है कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। रेड लाइट के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट लाइट के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ब्लू के लिए, येलो के लिए, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि सब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डेविएट होती है। सब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डेविएट होगी, अलग अलग कलर हम लोगों को विजिबल होंगे, तो इसलिए हमें पूरा इंद्रधनुष दिखाई देता है, यानी कि रेनबो दिखाई देता है, रेनबो आपको दिखाई देता है। ठीक है, यस। तो डायरेक्टली यहाँ मैं बोल लेता हूँ क्या, कि एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सिंपल यार, यहाँ से लाइट रे गई और जाके वो बहुत सारे ऐसे डिफ्रैक्ट हो गई, तो आपको वॉयलेट रेड वगैरह वगैरह सब आपको दिखाई देता है। ठीक है, यस, वो सारा पैटर्न मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। दिस फिनोमेना इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ मूव विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम। बट आप लोग को ध्यान में रखना है कि यार वैक्यूम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, सारे के सारे, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्क नहीं पड़ता, सारी की सारी लाइट सेम स्पीड से मूव करती है। क्यों, क्योंकि एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ओके, या बट जैसे किसी मीडियम में एंटर करेगी तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से क्या होगी, स्पीड्स उनकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। स्पीड्स चेंज हो जाती है, सारी लाइट अलग अलग होती है, उसकी वजह से हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि उनका एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम कॉचीज लॉ से समझ सकते हैं। कॉची ने बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। मींस a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब मुझे समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। जितना ज्यादा वेवलेंथ, उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप जानते हो डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू ए होता है, यानी कि जितना ज्यादा म्यू उतना ज्यादा डेविएशन, जितना कम म्यू उतना कम डेविएशन। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, याद रखो, आपको याद रखना है कि लैम्डा ऑफ रेड लाइट, रेड कलर की लाइट का लैम्डा इज मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम होता है। ओके, लैम्डा ऑफ वॉयलेट, वॉयलेट लाइट के लिए जो लैम्डा होता है, लैम्डा मतलब क्या, वेवलेंथ इज मिनिमम, वो हमेशा मिनिमम होती है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया क्या, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज मिनिमम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट दैट इज मैक्सिमम। इसका मतलब डेविएशन किसका मैक्सिमम होगा, तो डेल्टा ऑफ रेड इज मिनिमम
एंड डेल्टा ऑफ वायलेट इज मैक्सिमम। समझ में आया? जब कभी भी किसी प्रिज्म से लाइट पास होगी तो कैसे दिखाई देगी? देखो, ये लाइट रे आ रही है, व्हाइट लाइट आ गई। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। ये एक, ये दो, तीन, ऐसे करके बहुत सारे 7 कलर्स मान लिए। फर्स्ट वाला होगा रेड एंड लास्ट वाला जो होगा दैट इज वायलेट। यानी कि रेड का मिनिमम डेविएशन होगा और मैक्सिमम डेविएशन होगा वायलेट का। ओके, रीजन मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, ठीक है? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है? चलो फटाफट मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। Here you can see the diagrams are shown. Okay, यहाँ मैं लेजर यूज कर लेता हूँ। पेन से तो मैंने समझा ही दिया है। यस, लिसन, व्हाइट लाइट है, एयर से आ रही है और मीडियम में इंसर्ट की, सॉरी एंटर की। तो जैसे ही मीडियम में एंटर की तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गई। तो आप देख सकते हो कि लाइट रे जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ये इधर शिफ्ट हुई, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये रेड दिखाई दे रहा है सॉरी, रेड दिखाई दे रहा है। फिर ये बीच वाला येलो ले लेते हैं, येलो एकदम बीच में आता है, मीन होता है वो। एंड लास्ट दिस इज वायलेट। तो सबसे ज्यादा शिफ्ट किसका हुआ? वायलेट का। सबसे कम शिफ्ट किसका हुआ? रेड का। क्यों? कि जो वेवलेंथ थी वो सबसे ज्यादा किसकी थी? वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की थी। तो इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम तो शिफ्ट भी सबसे कम, ठीक है? वायलेट लाइट सबसे कम वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सबसे ज्यादा शिफ्ट। ओके, याद रखना। या नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक व्हाइट लाइट रे आ रही है, यहाँ पर एक स्लैब रखी है। तो ये देखो, ये फर्स्ट डेविएशन तो हुआ है यहाँ पर, है ना? अब ये वापस जब निकलती है तो फिर से पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाएगी? सबसे कम डेविएशन किसका था? रेड का, फिर येलो का और फिर वायलेट का। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट उनका पाथ होता है। सबसे कम शिफ्ट होता है रेड में, उसके बाद येलो में, और सबसे ज्यादा शिफ्ट जो होगा वो वायलेट में होगा, ठीक है? वायलेट में सबसे ज्यादा शिफ्ट होता है। लेटरल शिफ्ट भी वैसे ही आएगा, ठीक है? ओके, ये आपको बेसिकली समझ में आएगा। यहाँ पर प्रिज्म के हेल्प से दिया हुआ है। एक व्हाइट लाइट रे आ रही है, व्हाइट लाइट रे आने के बाद ये ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये सारी की सारी क्या हो गई? यहाँ के सारी की सारी लाइट रेज हो गई जो डिस्पर्शन हो गया। तो ये रेड लाइट, फिर येलो, वायलेट, एक्चुअली सारे कलर्स आते हैं, है ना? विबग्योर और आपको पता ही है। तो आर का सबसे कम होता है और वायलेट का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना? याद रखना, रेड का सबसे कम डेविएशन एंड वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन। रीजन एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिस्पर्शन का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। एंगल ऑफ डिस्पर्शन दैट इज व्हाट? एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? मतलब कि जो लाइट्स है ना, जो लाइट्स हैं वो रेड से लेके वायलेट तक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ये ले लो, ये रेड है और ये फिर सारे कलर्स आके लास्ट में वायलेट है। इन दोनों के बीच, रेड और वायलेट के बीच में जो एंगल बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है? आ रही बात समझ में? यही सिंपल सी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यार ध्यान में रखो, ऐसे कि लेट से ये प्रिज्म है, लाइट रे एंटर की और सारी डिस्पर्स हो गई। तो ये लेट से रेड जा रही है, बहुत सारी लाइट रेज हैं, लास्ट वाली की वायलेट है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, दिस इज थीटा एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो कैसे फाइंड करें? सिंपल, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। समझ आ गया? डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड। चलो डिराइव करते हैं। तो ये क्या आएगा? ये आएगा म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। चलो 1 1 खत्म हो गया, क्या आ रहा है? mu v minus mu r into a. So this is angle of dispersion. Okay, याद रखना है, this theta is angle of dispersion। और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? mu v minus mu r, मतलब nv minus nr लिख सकते हो into a। तो आपको ये फॉर्मूला किसी भी हालत में याद रखना है। फर्स्ट दिस फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर एंड सेकंड दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। ओके, दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो यही सिंपल सी चीज थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। और आपको डिस्पर्शन का फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? यस, I hope you are getting it very well, right? इसको अच्छे से याद रखना है ना? यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके देखो, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है? So let's move to the next slide. डेविएशन ऑफ बीम। सो डेविएशन कितना होता है? तो हम क्या करते हैं, हम जनरली मीन डेविएशन की बात करते हैं। किसकी? मीन डेविएशन की। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये प्रिज्म है ना, अब यहाँ से ये लाइट रे आई, यहाँ पर ये रेड का है और ये वाला वॉयलेट का है। तो हम एक्चुअल में डेविएशन किसका करें? तो हम मीन कलर ले लेते हैं, यानी कि इनके बीच का, तो दैट इज येलो। ओके, हम हमेशा येलो कलर के डेविएशन को ही हम क्या बोल लेते हैं? डेविएशन ऑफ बीन या फिर मीन डेविएशन बोलते हैं, ठीक है?
उसको हम लिखते हैं हमेशा डेल्टा, दैट इज डेल्टा वाई, और वो क्या होता है एन वाई माइनस वन। समझ में आ रहा है ना, म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, एन वाई माइनस वन इंटू ए। एन इज व्हाट, एन वाई इज येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि आपको येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे, एन वाई इज इक्वल टू एन वी प्लस एन आर बाई टू, मीन ले लो एन वी प्लस एन आर बाई टू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड डिवाइड बाय टू। ये आपको करना होगा यदि आपको येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है तो, है ना। आपको याद रखना है फॉर्मूला, मीन डेविएशन, येलो लाइट का डेविएशन होता है और उसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसका एक फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो एन वी प्लस एन आर डिवाइड बाई टू माइनस वन इंटू ए। ये फॉर्मूला आप और याद रख सकते हो। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है बेटा, डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा। समझ में आ रहा है, यानी कि एंगल ऑफ डिस्पर्शन, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्शन टू द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ डिस्पर्शन टू द एंगल ऑफ डेविएशन, it is the ratio of angle of dispersion to the angle of deviation, that's all। तो क्या मिलेगा, आपको पता ही है कि ये थीटा की वैल्यू जो होती है ना वो होती है एन वी माइनस एन आर, है ना। और डेल्टा की वैल्यू तो अभी देखिए ऊपर क्या होती है, एन वाई माइनस वन इंटू क्या, टू ए। ठीक है, बस दोनों का रेशियो लेना है, मतलब ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा, यानी कि ये nv minus nr upon ny minus 1। So this is the formula you need to remember, my dear friends, that's all। okay, अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, इसको देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मिनट, yeah, so what is the question, refractive index of glass for red and violet colors। red and violet colors के लिए क्या दे रखा है, 1.50 and 1.60। 1.50 and 1.60 दे रखा है, किसके लिए, violet and red के लिए। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर। येलो कलर का बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। आपको बताया था मैंने एन वाई इज इक्वल टू व्हाट, एन वी प्लस एन आर बाई टू, ये होता है ना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। 1.50 प्लस 1.60 डिवाइड बाई टू, क्या आ रहा है यार, यहाँ आ रहा है देखो, 15 प्लस 15 30 31, तो 3.1 डिवाइड बाई टू, यही आ रहा है। डिवाइड करो क्या आएगा, ये मैं 2 से डिवाइड करता हूँ कितने टाइम जाता है पता है ना आपको, या कितना आ रहा है 15.5। ठीक है, यहाँ मुझे समझ में आ गया, सॉरी 1.55, 15.5 नहीं 1.55। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर इज 1.55। ठीक है, अब पूछा है फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम मतलब ओमेगा, है ना। और ओमेगा को क्या लिखते हैं, ओमेगा को मैं लिखता हूँ थीटा अपॉन डेल्टा, थीटा अपॉन डेल्टा, यानी कि एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाय एन वाई माइनस वन। चलो करें फाइंड, एन वी माइनस एन आर कितना आया, एन वी इज दिस, कितना 1.6, और एन आर कितना है, एन आर इज 1.5, है ना। माइनस कर लिया तो कितना बच रहा है, 1.6 माइनस 1.5 डिवाइड बाय एन वाई माइनस वन। एन वाई अभी फाइंड किया 1.55, 1.55 माइनस वन। ठीक है, फाइनली क्या मिल रहा है, फाइनली मुझे मिल रहा है 0.1 डिवाइड बाय 0.55। ओके, तो यहाँ मुझे मिल रहा है कितना, मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं इन पॉइंट्स को उड़ाता हूँ, है ना, हटाता हूँ, मुझे मिलता है 10/55। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 10 डिवाइड बाय 55, कैंसिल करो 2/11। ठीक, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऑल ऑफ यू कैन डू इट, जिस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन मतलब डेल्टा की वैल्यू आनी चाहिए 0 लेकिन डिस्पर्शन होना चाहिए, तो क्या करोगे, ऐसा कभी एक अकेले प्रिज्म से पॉसिबल नहीं है, दो प्रिज्म को कॉम्बिनेशन पे रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक प्रिज्म ये ले लिया और सेम प्रिज्म को उल्टा ऐसे रख लिया, ये दो प्रिज्म को रख लिया। एक में यदि डेविएशन पॉजिटिव आता है तो दूसरे में नेगेटिव प्लस माइनस जीरो, मैं बोलूंगा डेविएशन नेट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ में डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू करना है, समझ में आ गया, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। ओके, बस यही करना है अपने को। मैं क्या कर लूंगा, मुझे डेल्टा का फॉर्मूला पता है एन वाई माइनस वन, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज, लिसन,
डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 उसको सीधा रखा है और दूसरा प्रिज्म उल्टा रखा है तो माइनस डेल्टा 2, तो इन दोनों का नेट डेविएशन 0 आना चाहिए, तो मतलब डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 लिख सकता हूँ। चलो यहाँ पर मैं लिख लूंगा ny माइनस 1 फर्स्ट वाले के लिए, है ना, इनटू a, दैट इज सेकंड के लिए ny माइनस 1 इनटू a। ओके, तो दूसरे वाले के लिए a डैश, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ डिफरेंट होगा तो ny डैश लिख लिया, ठीक है। तो सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही सिंपल सा मेथड है, जब कभी भी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन के लिए बोले तो ऐसे करना है। ny कैसे फाइंड करते हैं, nv प्लस nr/2 आपको पता ही है, वो रख लेना। आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है ना। जब कभी भी आपको बोले कि यार लाइट रे का डिस्पर्शन हो रहा है विदाउट डेविएशन, इसको डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, मतलब बिना किसी डेविएशन के दिख रहा है, तो डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट जो दिख रहा है ना, डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, तो डिस्पर्शन नहीं हो रहा है मतलब थीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और थीटा कैसे फाइंड करते हैं पता ही है, थीटा का फॉर्मूला है एन वी माइनस एन आर इंटू ए, यही होता है थीटा, राइट। अब ये कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियसली दो प्रिज्म को कॉम्बिनेशन में रखा है, मैं बोलूंगा कि एक को तो मैं थीटा 1 लिख लूं, है ना, और माइनस थीटा 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हो गया नेट डिस्पर्शन, वो होना चाहिए 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन वी माइनस एन आर, यानी कि मैं बोल लूंगा थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 के बराबर होनी चाहिए, दैट्स ऑल। nv minus nr into a, that will be equal to nv dash minus nr dash into a dash, that's all। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रिज्म से क्वेश्चंस नीट में आते हैं, ओके। ये बेसिक बेसिक थ्योरी है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे ठीक से, है ना। तो दैट्स ऑल, यही बेसिक सी चीज मैं आपको समझाना चाहता था, ये अच्छे से आपको आना चाहिए, है ना। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, इसके क्वेश्चंस लेने जितना टाइम मेरे पास बचा नहीं है, फिर कभी देखेंगे, ठीक है। बट आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, राइट। तो कुछ भी मटेरियल आपके पास है, कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया है ना। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा इसी तरह का है, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से समझते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी गारंटी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। So I would like to say please subscribe our channel and click the bell icon so that you will get the notifications of our video. And next I will say please गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यदि आप 2021 एंड 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मेरा कोड यूज करना चाहिए, RAHULD, राहुल डी, एंड गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बेटा मैं बोल रहा हूँ ना कि आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं और उसके बाद आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। बहुत अच्छे-अच्छे एजुकेटर्स हैं, जो आपको पसंद है उसके लेक्चर्स आप देखिए। इसके अलावा आपको पूरा मटेरियल यहाँ पर मिलता है अनअकैडमी ऐप पर। इसके अलावा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, है ना? आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और सिर्फ 32,400 2 इयर्स के लिए, और 1 ईयर के लिए जस्ट 27,000 रुपीज़। तो यार ये तो बहुत-बहुत कम है बेटा, कोई भी अफोर्ड कर सकता है ना? क्या बेनिफिट्स है? फर्स्ट थिंग, आपको किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये टॉपिक एक बार फिर से समझा दो, है ना? आपको सब यहाँ पर फिर से मिल रहा है। एक एजुकेटर से नहीं समझ में आया, किसी और का लेक्चर देख लो, उसी टॉपिक पे मिल जाएगा, ठीक है, राइट। समझ आया। इस तरह से मैं आपको बोलना चाहता हूँ बेटा कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है ना। अन अकेडमी ऐप पर यदि आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट, ओके, राइट। तो अन अकेडमी ऐप पर भी मेरे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, एंड यहाँ पर भी आपको मेरे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, राइट, यूट्यूब पर। तो सारा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड वे में अन अकेडमी ऐप पर ही मिलने वाला है। तो वहाँ क्विज वगैरह खेलते हैं, बहुत मजे आते हैं ना, आप लोग भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल, ये सफिशिएंट है आज के लिए, है ना। बेटा आप नेक्स्ट जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो मुझे यहाँ सजेस्ट कर लेना। तो अभी तो हमारा रे ऑप्टिक्स आधा हुआ है, अभी नेक्स्ट मैं लेकर आऊंगा आपके सामने लेंस, है ना। तो लेंस को हम अच्छे से डील करने वाले हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा लेंस से रिलेटेड होने वाला है पूरी तरह से, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेंसेज एंड ऑल, ओके। तो उसके नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरा लेक्चर। सो सी यू, बाय बाय। यूज माय कोड राहुल डी एंड गेट 10% डिस्काउंट इन द सब्सक्रिप्शन फी। सो बाय बाय।
तो मेरे दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो बाय बाय।